So good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good. Today we have expert in between us. Our expert is Dr. Raksha Parulkar, ma'am. She has completed her PhD in structural engineering with having an experience of academic experience of 13 years and 3 years of her industrial experience. Today she'll be guiding us through the design concepts of bridge engineering. So we'll start our session. Whatever queries, whatever doubts you have, you can ask to your expert, and let the session be an interactive one. Okay, ma'am, we'll start. Yes, we can Yeah. start. It is my fortune that I am here, and actually, what I want that I should not teach you something. You should ask me. जो भी आपके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम है, it should be an interactive session because I'm just taking a problem before you. You must have done this in your class, but each and every step you should stop me and ask me whatever is the problem with you. Okay, so I'm sharing a problem. It is of NK राजू. ये एक प्रॉब्लम है आपके सामने. So can you see the shared screen? Yes, ma'am, it's visible. Okay. So I'll start with this problem. It is actually solved problem. So आपको जहां भी जिस जगह भी ऐसा लगे कि नहीं ये मुझे समझ में नहीं आया तो I'll I'll explain each and everything. ठीक है? So I have to design a post-tension pre-stressed concrete slab bridge deck for a national highway crossing to suit the following data. Now let me explain. No, not let me explain. I'll ask you first that what do you mean by post-tension pre-stressed? Anybody from you? Ma'am, in that the steel is stressed after the concrete is being set. Steel is stressed after the concrete is Set. set. उसको हम पोस्ट टेंशन कहते हैं और प्री स्ट्रेस्ड किसको कहते हैं? Like we stress the steel before casting the concrete, Okay. and and there is and there is bond between the steel and the concrete. Okay. Now you got the point. What is post tension and pre stressed concrete? You already know. But what I have to design, I have to design a slab bridge deck. Now, what do you mean by deck slab bridge? There are two type of bridge: deck slab bridge and through type bridge. So, do you know the difference? What is deck slab bridge and what is through type bridge? Ma'am, it's the up and down bridge. Up and down means you're right, Through but yeah, it should be. through is up bridge, like above. The bridge See, is what above about the deck or the road surface. the slabs? Actually, the trusses or any part superstructure is above the slab. And Yes, like in yeah, through the truss is above the deck. yes, and in deck slab it is below the slab. Okay. Now for a national highway crossing, why it is mentioned that it is for national highway means there are some other type of highways also. और कौन सी टाइप के हाईवे है क्योंकि इसने स्पेसिफिकली इट इज मेंशन दैट इट इज नेशनल हाईवे क्रॉसिंग. स्टेट हाईवे और टेम्पररी रोड्स जो हमारे गांव में बनती है. ठीक है. एक्सप्रेसवे एक्सप्रेस तो अभी इसमें स्पेशली मेंशन किया है कि इट इज नेशनल हाईवे क्रॉसिंग. सो now it is clear that I have to design a deck slab bridge. It is pretension post, sorry, it is post tension and it is a national highway crossing. Means जो भी loading होगी I have to take it for national highway. Now what there should be some input क्योंकि अगर आपके पास कोई client आता है he must be having some input with him. So the clear span is 10 meter. Width of bearing, do you know what is bearing? The support. हाँ, सपोर्ट जिस पर हम स्लैब को रेस्ट करते हैं.
क्योंकि generally the bridge slab is simply supported or fixed slab. What are the support conditions of bridge slab? Simply supported. Simply supported. So just the slab is kept on the bearings. You must have observed that bearings कैसे होते हैं, जो आपने देखे होंगे कभी भी फ्लाईओवर ब्रिजेस है या कोई ब्रिजेस है, वहां पे बियरिंग किस मटेरियल के बनाए जाते हैं? मैम अलग अलग होते हैं मैम, इलास्टोमेरिक बेयरिंग्स भी होते हैं, स्टील के भी बेयरिंग्स होते हैं, प्लेट्स, हाँ, रबर बियरिंग्स होते हैं, कंक्रीट बियरिंग्स होते हैं. Then clear width of roadway, it is given 7.5 meter. I'll explain this from where it is taken. Footpaths 1 meter on either side, curb 600 mm wide by 300 mm deep. Thickness of wearing coat. Now what is this wearing coat? Topmost coat. Anybody from you? Wearing coat का क्या मतलब है? I think सबको मालूम है, हमने इतने चीजें सॉल्व कर ली है. It is It can be any material like this. It can be of any material, but why it is provided? And it is provided where? above the deck. Above the deck slab for resisting all the impact. Yes, this is the purpose. And bearing coat can be provided by any of the material. It can be by bitumen, it can be by concrete also. Live load, it is taken IRC class AA tracked vehicle. Now, what do you mean? What is the full form of IRC? Indian Road Congress. Indian Road Congress. Road Congress. ठीक है, क्लास ए ट्रैक्ड व्हीकल, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल. और यही व्हीकल क्यों ली गई है? क्लास बी लोडिंग भी ले सकते थे, 70R लोडिंग भी कैन बी टेकन, क्लास ए लोडिंग कैन बी टेकन. व्हाई क्लास ए ट्रैक्ड व्हीकल इज टेकन? It provides the worst effect for the maximum load. It has the maximum load. It has the maximum load, but because you are designing a national highway, you are not designing a temporary roads, you are not designing a state highway, you are designing a national highway, and therefore it should take a maximum vehicle load, and maximum vehicle load is not a tracked vehicle. Which one is that? 70R 1000. 70R1. Sometimes 70R1 is the maximum, but sometimes we have to check it for class A loading also. So here it is taken, but class A tracked vehicle is also being taken. Now it is obsolete. First it has, पहले ऐसा हुआ करता था कि we used to take class A tracked vehicle. Type of structure is class 1 type. मैम excuse me. हाँ मैम, तो अभी कौन सा लेते हैं? अभी हम 70R और क्लास ए लोडिंग से डिजाइन करना प्रेफर करते हैं, नॉट फॉर ए ट्रैक्ड व्हीकल. तो पर स्टिल इट इज देयर इन द कोड, सम ऑफ द इंजीनियर्स यूज इट आल्सो. बट पर जब हमको डिजाइन करना होता है, एक्चुअली जब ब्रिज हम डिजाइन करने जाते हैं तो हमको सारे लोडिंग्स के लिए एक बार चेक लगाना होता है, और मैक्सिमम जिसमें होता है, सारे के लिए नहीं. यू विल नॉट गो फॉर बी क्लास लोडिंग फॉर नेशनल हाईवे, यू विल गो ओनली फॉर 70R एंड ए क्लास लोडिंग. समटाइम्स अगर ऐसा कुछ है कि वहां से कभी टैंक भी निकल सकता है, मिलिट्री टैंक, ऐसी कोई रोड है, तो फिर हम क्लास ए ट्रैक के लिए भी उसको एक बार चेक करते हैं. ठीक है मैम, और एक स्पेशल व्हीकल का भी एक कोड में था IRC से. हाँ है, वो एक्चुअली मल्टी एक्सल व्हीकल होगा, है ना. अभी मैंने एक्चुअली ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है. आपने कौन सा IRC 6 कौन सा पढ़ा है? मॉडिफाइड वर्जन पढ़ा है क्या उसमें ऐड हुआ है? नहीं मैम, उसमें मतलब अपना मतलब 1 मिनट में देख लेता हूँ मैं. हाँ नहीं, अभी मैं ये सारी चीजें कवर करूंगी. अभी ये जस्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, first we should know, then we will start design. So materials, they have taken M40 grade concrete.
So why can't they have taken M20 grade of concrete or M10 grade of concrete? Why it is only M40? It can be taken as other also. For pre-stressing, that is the minimum requirement. फॉर प्री Minimum स्ट्रेस requirement. कंक्रीट के लिए मिनिमम उतना ही लगता है. हाँ, मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होता है प्री स्ट्रेस के लिए? नॉट M40 इज नॉट द मिनिमम रिक्वायरमेंट. मिनिमम रिक्वायरमेंट इज समथिंग 35. अदर. M35. M35. It should be above M20 grade, but M40 is most preferable. ठीक है. And 7 mm diameter high tensile wires with an ultimate tensile strength of 1500 Newton per mm square, housed in cables with 12 wires and anchored by Fresinet anchorages of 150 mm diameter. ये इसका पूरे का मतलब समझ में आया? At 7 mm diameter high tensile wires with ultimate tensile strength, housed in cables with 12 wires and anchored by. ये इसका कोई मीनिंग बता सकता है? व्हाट ही वांट्स टू टेल. ये तो आपने मुझे पहले ही बता दिया कि इसमें जो भी टेंडन हम यूज करेंगे वो टेंडन ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है ना. फिर हमने कॉन्क्रीटिंग की नहीं, इट इज कॉन्क्रीटिंग के बाद हमने स्ट्रेस किया है. तो ये 7 mm डायमीटर हाई टेंसाइल वायर क्या कहना चाहता है यहाँ पे? व्हाट मटेरियल ही हैज टेकन? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट डू यू मीन बाय टेंडन? मैम वो वायर के स्ट्रैंड्स होते हैं. वायर्स होते हैं और वो एक सिंगल वायर वो कह रहा है इट इज द डायमीटर ऑफ 7 mm और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर. उसको हमने केबल की तरह ने 12 वायर्स को मिला के उसको एंकर किया है और उसको एंकर हमने किससे किया है? फ्रेजिनेट एंकरेजेस. तो अगर आपने प्री स्ट्रेस को अच्छा से पढ़ा होगा तो आप मुझे इसका मतलब बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेजिनेट एंकरेजेस? ये क्या है? मैम एक्चुअली इनका ना प्री स्ट्रेस दूसरे सब्जेक्ट में साइमल्टेनियसली चल ही रहा है, तो शायद ही थोड़ा बहुत आंसर कर पाएंगे. नहीं ठीक है. इफ दे डोंट नो देन मैं बैठी इसलिए हूँ कि आई हैव टू टेल. हाँ, तुम भी कुछ आंसर्स दे पाएंगे और कुछ नहीं भी दे पाएंगे. तो मैं एक्चुअली इनको टेस्ट ही कर रही हूँ. जहां ये नहीं दे सकते वहां मुझे समझाना है. जहां इन्होंने आंसर दे दिया इसका मतलब है कि ठीक है, आई हैव टू गो फॉरवर्ड. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा. यू डोंट नो एंड हमेशा स्टूडेंट ही ऐसी स्टेप पे होता है, तभी तो टीचर्स की जरूरत होती है. अगर सारे आंसर आपने मुझे दे दिए तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ टेकिंग एनी लेक्चर फॉर मी. सो ठीक है, मैं इसको समझाती हूँ. देखो, जब हम आपने ये जो अभी मुझे बताया था ना प्री टेंशन प्री स्ट्रेस वाला, तो एक काम करती हूँ मैं इसके लिए कुछ शेयर करती हूँ आपसे. प्री स्ट्रेस की एक बुक है, मैं वो शेयर करती हूँ आपसे. Wait a minute, please.
ये डायरेक्ट ही ले रहा है मुझे लगता है। शेयर मैंने अगर ओपन भी कर लिया है तो भी ये ले नहीं रहा है। मैम पीडीएफ में है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली नेट पर ही है। तो मैम ये है ना, आप नेट वाला ये जो टैब है ना उससे शेयर कर लो। आप प्रेजेंट नाउ पे करोगे ना तो वो टैब का जो ऑप्शन है थ्रू दैट आप उस डायरेक्टली नेट वाला ऑप्शन शेयर कर सकते हो। ठीक है, हाँ देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, एक फिगर है आपके सामने और दिस इज द बीम और ये टेंडन एंकरेज है। ये बीच में एक जो लाइन है दैट इज टेंडन और यहाँ जैक लगाया गया है। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ, जनरली हम मैकेनिकल डिवाइसेस यूज करते हैं जिससे कि हम स्टील में टेंशन, स्टील को हम स्ट्रेस कर सकें। सो देर आर 4 एक्चुअली डिवाइसेस, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। सो आउट ऑफ दिस हाइड्रोलिक जैक जनरली हम यूज करते हैं, इट इज द सिंपलेस्ट। तो हाइड्रोलिक जैक आप लोग समझते होंगे, व्हाट डज इट मीन। सो हाइड्रोलिक जैक में एक फ्रेजिनेट नाम का एंकरेज, मीन्स ये जो एंकर हमने दिया है इट इज फ्रेजिनेट। और ये कैसे होगा इसको एक फिगर से उन्होंने अच्छे से समझाया है। ये एंकरेज, ये देखो ये है फ्रेजिनेट एंकरेज। So there are actually 4 type of anchorages: resonate, magnet, Gifford udal and ball unit। उसमें से एक टाइप है जिसमें ये यूज किया गया। इट इज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द टेंडन ताकि हम उसको फिक्स कर सके और फिर हम जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं उसके बाद जब कॉन्क्रीटिंग करते हैं और फिर इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये फ्रेजिनेट एंकरेज की बात कर रहा है। तो ही इज आस्किंग दैट यूज दिस स्पेशल टाइप ऑफ एंकरेज एंड देन डिजाइन। ठीक है, सो आई विल रिटर्न बैक अगेन। मैम हाँ हाँ ठीक। मैम ये पोस्ट टेंशन में मैम आपने अभी बताया ना मैम, वो वापस बताओ ना एक बार कि तो एक्चुअली पोस्ट प्री स्ट्रेस का है, वो भी फिर से खुलू ऐसा। नहीं मैम, वो नहीं मैम, सिर्फ आप एक्सप्लेन वैसे करो कि सबसे पहले मेंबर को होमवर्क डालते फिर मतलब वो हिसाब से एक्सप्लेन करो ना मैम, मतलब अच्छा जैसे ठीक है, वो समझ नहीं आया। देखो उसने यहाँ लिखा हुआ भी है ऊपर। एक्चुअली इसने क्या किया है, दिस इज दी बीम, ठीक है, और इस बीम में इसने पहले यहाँ पर टेंडन बांध दिया है। ठीक है, यहाँ बांध दिया है और यहाँ इसको एंकर कर दिया है, यहाँ से अब ये फिक्स हो गया। ठीक है, ये कास्टिंग बेड है। इस पर इसने पहले ही प्री स्ट्रेस में क्या किया, हाइड्रोलिक जैक से उस पर फोर्स लगाना शुरू किया, टेंसाइल फोर्स, ताकि ये स्ट्रेच होता जाए। इसको इसके लिमिट तक इसको पहले स्ट्रेच कर लिया। मतलब कि मैम एक मिनट मैम, कौन सा लिमिट, इलोंगेशन लिमिट की स्ट्रेस लिमिट? इलोंगेशन लिमिट। स्ट्रेस लिमिट का क्या मतलब होता है? हाँ, मतलब कितने स्ट्रेस तक मुझे फोर्स अप्लाई करना है उतने एरिया को रेजिस्ट करने के लिए, वो वाला स्ट्रेस, ऐसा भी हो सकता है। परमिसिबल स्ट्रेस समझ लो, हाँ, है ना, उसकी जितनी परमिसिबल स्ट्रेस है, ताकि मैं उसको जब इतना इलास्टिक स्ट्रेस के अंदर मैं उसको इतना स्ट्रेस ना कर दूं कि वो ब्रेक हो जाए। इतना स्ट्रेस कर सकते हूँ कि अगर मैं जब लोड वापस मैंने छोड़ दूं तो इट शुड रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और इट्स उसका जो भी शेप है ओरिजिनल शेप पर आ जाए। तो फिर तो उसको उससे ज्यादा मुझे मींस यू कैन से दैट दिस इज द परमिसिबल स्ट्रेस। ओके, मतलब मैं उतना फोर्स के हिसाब से मैं अप्लाई करेगा वो टेंडन को, स्ट्रेन के हिसाब से नहीं। स्ट्रेन अगर, हाँ अगर एक्चुअली तुमने स्ट्रेन तक ले गए, इसका मतलब यू हैव गॉन टिल प्लास्टिक लिमिट, मींस देयर वुड बी सम डिफॉर्मेशन इन दी टेंडन, और वहां तक हमको नहीं जाना, यील्ड पॉइंट तक नहीं जाना है। बिफोर द यील्ड पॉइंट हम इस पर स्ट्रेस
अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नहीं मतलब मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब लोकल लेबर या जो भी वर्कर जो काम कर रहा है इस पे टेंडन पे, तो वो मशीन पे क्या दिखता है, मतलब इतना इलोंगेशन करके छोड़ रखना है, पकड़ के रखना है, वैसा वैसा उन लोग देखते हैं कि इतना। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमको इनपुट पे क्या दिया है उसने, 1500 न्यूटन पर mm square, 7 mm diameter high tensile wires with an ultimate tensile strength of 1500 Newton per mm square. Ultimate means it is the collapse load. ठीक है, 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी लिमिट है। ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट। सो जहां भी हाइड्रोलिक जैक लगा है, इट हैज अ डायल गेज विथ इट। ओके, और जब वो फोर्स लगा रहा है तब उसके पास लोड और एरिया दोनों है। सो ही नोज दैट हाउ मच ही हैज रीच टू, इट शुड बी विद इन 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, नॉट मोर देन दैट। ओके, समझ गया। है ना? ठीक, तो मैं इसको एंड करूं फिर आगे आऊं आगे। हाँ मैम, तो फिर 1500 न्यूटन पर एम स्क्वायर तक पुल किया, फिर उसको वैसे ही रखेंगे और कंक्रीट कास्ट करेंगे, बराबर? और कंक्रीट कास्ट करेंगे, और कंक्रीट कास्ट करने के बाद जब कंक्रीट सेट हो जाए, मतलब 24 आवर्स की 28 डेज पूरा स्ट्रेंथ आने 28 तक। डेज। 28 कंक्रीट डेज। जैसे सेट तो 30 मिनट में हो जाता है, हाँ, तो कंक्रीट हार्डन प्रॉपर्टी तक आ जाए, ये जो इनिशियल सेटिंग नहीं, हाँ, जो फाइनल सेटिंग है, फाइनल सेटिंग तो इसको कितने मिनट में मिलती है? 10 आवर्स। हाँ, 10 आवर्स में मिलती है। और इनिशियल सेटिंग कितने मिनट में मिलती है? हाफ एन आवर टू मिनट। हाफ एन आवर में। तो इनिशियल सेटिंग में अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो मे बी उसका जो शेप है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो जब वो हार्ड हो जाए, वैसे इसमें जो लिखा है ना बुक में, इट इज फॉर 28 डेज। ओके, मतलब 28 दिन तक पूरा अगर कंक्रीट का स्ट्रेंथ आ गया, उसके बाद ही टेंडेंस को रिलीज उसके करके बाद आप इसको यानी एंकर्स को खोल दीजिए। तो जैसे ये खोलेंगे तो जितना भी उसमें जो फोर्स था, इट विल ट्रांसफर इट टू कंक्रीट। बराबर। और फिर काटना है कि काटना नहीं है? आपने काटना है भी, लेकिन अगर मैं ऐसे नंबर ऑफ बीम्स बना रही हूँ, सो देयर इज अ वे कि हम उसको कंटिन्यूअस रख के भी कर सकते हैं। मतलब कंटिन्यूस मतलब? जैसे मुझे एक से ज्यादा बीम कास्ट करने हैं, हाँ, तो मैं एक साथ सारे रख के भी कर सकती हूँ एक लाइन में। ओके, मतलब हर एक अलग अलग को खींच के वैसा हाँ, नहीं? हाइड्रोलिक जैक तो कॉमन है, हाँ। और एंकर जो मेरा एंड में लगा है वो भी कॉमन है, हम्म, पर उसके बीच में जो बीम है वो मैं काफी सारे बीम, अगर इट इज ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ तो मैं यूज कर सकती हूँ। बराबर। और ये प्रीकास्ट और इनसाइड दोनों पे काम चल सकता है पोस्ट इंजीनियरिंग? हाँ, ओके। ये तो अभी एक्चुअल हम जिस पे आना चाहते हैं बीम पर, क्योंकि नंबर है शायद। मैम, हमको मैंने जो पूछा ना अभी वो सब नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, वो फील्ड नॉलेज है तो हाँ शायद मैम, नहीं। फील्ड नॉलेज बिल्कुल नहीं है, देखा ही नहीं है किधर। एक्चुअली ना प्री स्ट्रेस कंक्रीट वगैरह ये हमारे देखने में नहीं आते, आई हैव आल्सो नॉट सीन एनीवेयर। पर ठीक है, और एक्चुअली आपके ये लेक्चर के लिए भी मैंने प्री स्ट्रेस के लिए ज्यादा प्रिपरेशन की, बिकॉज ब्रिज पे ठीक है मैंने काम किया है, मैंने फील्ड पे भी काम किया है, लेकिन प्री स्ट्रेस इज समथिंग न्यू फॉर मी ऑल्सो। मैंने जैसे ही मैडम ने मुझे ये बोला ना, इट वॉज द पार्ट ऑफ दिस ब्रिज, सो फर्स्ट मैंने इसका लिटरेचर पहले पढ़ा। और अभी लॉकडाउन में सबसे बड़ी दिक्कत है बुक्स, बुक्स तो कॉलेज में है। हाँ मैम। Actually, I lost the page. 265, I think so it was. So I think so आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है ना?
अब हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि अगर मुझे ये पता हो कि क्वेश्चन क्या है, मुझे क्या करना है, डिजाइन क्या क्या दिमाग में रखना है, तो फिर आसान होता है व्हाट शुड वी डिजाइन। अब मुझे ये बताओ, मैं जब तक पेज निकाल रही हूँ आप मुझे ये बताइएगा कि मुझे एक ब्रिज डिजाइन करना है। अब आप दिमाग में थोड़ा सा ये सामने रखो कि देयर इज अ ब्रिज, ठीक है, ब्रिज का एक पैनल है, आप ब्रिज पर कहीं खड़े हो और आपको ब्रिज डिजाइन करने को किसी ने बोला है, एंड यू हैव नेवर डिजाइंड इट बिफोर आल्सो, एंड यू हैव नेवर सीन डिजाइनिंग समवन। तो अब आप पहले दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा, उसने आपको सारे इनपुट दे दिए, ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि जो व्हीकल इसने मुझे दी है वो व्हीकल मैं इसको कहाँ रखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा। अब आपने पढ़ा भी है तो मस्ट बी यू कैन आंसर। देखो, कभी किसी स्ट्रक्चर को अगर डिजाइन करना हो तो उसको इतना फ्लेक्सिबल बना दो ताकि जब भी आप उस पर लोड लगाओ तो इट विल फेल। इस तरीके से फेल होगा कि उसका बिहेवियर समझ में आएगा कि इसका बिहेवियर क्या है, वो किस चीज में फेल हो रहा है। तो अगर आपको ब्रिज डिजाइन करना है, इट्स समथिंग लाइक अ स्लैब, आरसीसी स्लैब। जो इन्होंने मुझे इनपुट दिया था उसके हिसाब से FCK इज नाउ विथ मी इज 40, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट ट्रांसफर, ये सब सारी चीजें इसने IS 1343 IRC 18 से लिए। तो मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करती हूँ, आई जस्ट कम टू दिस डेप्थ ऑफ स्लैब एंड इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, ये फिगर देख के मुझे एक बात बताओ कि ये फिगर देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्रॉस सेक्शन ऑफ डेक स्लैब, क्या ये सबको देखकर समझ में आ रहा है कि ये क्या है और मुझे कहाँ से कहाँ जाना है? आप इसको खुद इमेजिन कर पा रहे हो कि ब्रिज का कौन सा पार्ट है? मैम एक्चुअली आपकी दूसरी स्क्रीन शेयर्ड है, आई मीन आपका कोई फोल्डर ओपन है, आई थिंक वो शेयर्ड है। ये शेयर नहीं है, बाप रे, एक मिनट। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब डेप्थ ऑफ स्लैब एंड इफेक्टिव स्पैन ये दिखाई दे रहा है ना? हाँ 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 मैम, अभी ठीक है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ डेक स्लैब इज शोन इन फिगर 11.5। मैं इसको देख के पूछ रही हूँ आपसे कि ये देखकर कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अब मुझे ये डिजाइन करना है। ये यहां से लेकर 7.5 इज द कैरेजवे विड्थ। कैरेजवे विड्थ का मतलब है कि जहां पर व्हीकल पास होगा इतने ही पोर्शन में व्हीकल कैन रन, ठीक है। फुटपाथ इज 1000, हियर आल्सो फुटपाथ इज 1000 mm। डेप्थ ऑफ स्लैब और ये टोटल डेप्थ दिस इज 9.5। नाउ डेप्थ ऑफ स्लैब मुझे अगर कैलकुलेट करनी है तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगी जिस तरीके से हम आरसीसी बिल्डिंग के लिए डिजाइन करते हैं, तो देयर शुड बी सम अजम्पशन। तो अजम्पशन इसने लिया है थिकनेस ऑफ स्लैब एट 50 mm पर मीटर ऑफ स्पान, 1 मीटर के लिए 50 mm लिया है, ये यहाँ लिया है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पास ये अजम्पशन नहीं है एंड आई डोंट नो हाउ टू टेक, तो आप मिनिमम डेप्थ ऑफ स्लैब कितनी लोगे फॉर ब्रिज? 200 to 250 mm. 200 to 250, दिस इज द मिनिमम डेप्थ। लेकिन अगर आप एक घर के लिए डिजाइन कर रहे हो तो व्हाट विल बी द मिनिमम डेप्थ ऑफ स्लैब? 90। नो, 90 नहीं लेते हम आरसीसी में, कभी भी कोई थिकनेस 90 नहीं होती, इट शुड बी 100, मिनिमम इज 100। लेकिन हम जब हमारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग की स्लैब बना रहे होते देन इट शुड बी 120 to 150, सॉरी 150 to 120 to 200। इट डज नॉट गो अप टू 200 क्योंकि 8 इंच की कोई स्लैब हम जनरली डिजाइन नहीं करते, लेकिन 4.5 से लेके 5.5 इंच तक हम स्लैब की थिकनेस रखते हैं। तो मिनिमम मेरे पास अगर डेप्थ ऑफ स्लैब नहीं है तो आई शुड टेक 200 mm और आई शुड फॉलो दिस 50 mm पर मीटर ऑफ स्पान। तो इससे मुझे 500 mm मिल गई। विड्थ ऑफ बेयरिंग है इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान यू ऑल नो हाउ इट इज कैलकुलेटेड। जैसे हमने आरसीसी में आपने आरसीसी डिजाइन में कैलकुलेट किया होगा,
हम इफेक्टिव स्पान कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबको आता है इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करना, हमने कैलकुलेट भी हाँ, किया है। हाँ तो फिर बोलो तो एटलीस्ट। मिनिमम ऑफ, आप नहीं बोलोगे इसका मतलब मुझे ये लगेगा कि आपको नहीं आता है। आता है मैम, मिनिमम ऑफ क्लियर स्पैन प्लस width of bearing or mini or clear span plus effective depth of slab. Yes, the same concept will apply here also and we'll calculate the effective span. ठीक है, अब ये मोमेंट डेड वेट आप निकाल सकते हो, इट इज WL स्क्वायर बाय बिकॉज इट इज सिंपली सपोर्टेड स्लैब। लाइव लोड मेन है, लेकिन उससे पहले मुझे ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो मुझे आप में से ये बताओ, ये स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है कि इस स्ट्रक्चर को मुझे 3D में समझाना चाहिए? क्रॉस सेक्शन ऑफ डेक स्लैब आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ मैम आ रहा है। यस मैम, समझ रहा है। ठीक है, तो मैं अब आती हूँ IRC 6। So detail of IRC loadings, or these are the class 70R wheel loading. PPT नहीं, मतलब जो भी IC6 नहीं विजिबल है। क्या? मैम वही Ma'am, आपकी IRC फोल्डर is not वाली, visible. हाँ मीन फोल्डर वाला स्क्रीन शेयर्ड है। अब दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ मैम। Yes, ma'am. इसमें क्लास A ट्रैक्ड नहीं है शायद, मैम एनेक्सर में। एनेक्सर में, एंड में, हाँ मैम मैम उसी में उसी में। मतलब यही IRC में नीचे में मैनेजर होता है ना उसमें। हाँ, अरे तो मैं यही कह रही थी कि एंड में होगा, यहाँ से हटा दिया होगा उन्होंने। ये हाँ, okay. ठीक है, तो इसको हम पहले एक बार देख लें ये क्या है। देखो, इसकी टोटल विड्थ है 7200 और इसके एक टायर की विड्थ है 0.85। 1.2 is the clearance between the two tires. Total load is 35 ton of one, sorry, total load is 70 ton and individual vehicle load is 35। ठीक है, इसको यूज किया है इसने इस लोडिंग को यूज किया है। और इसमें देखो लिखा है, फॉर मल्टी लेन ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स each class AA loading shall be considered to occupy 2 lanes and no other vehicle shall be allowed in these 2 lanes. The crossing vehicle can only be allowed on lanes other than these 2 lanes. Load combination एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है जब हम डिज़ाइन करते हैं। आप लोगों को लोड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाए जाते इसमें,
पर जनरली लोड कॉम्बिनेशन हमको बहुत जरूरी होता है कि अगर हम क्लास ए लोडिंग ले रहे हैं तो उसके साथ में हमको किस टाइप की लोडिंग कंसिडर करना है, क्योंकि हमेशा अगर मैं सिंगल लेन रोड ले रही हूँ तो उसकी विड्थ कितनी होगी? अभी ये जो 7.5 मीटर लिया है, दिस इज 2 लेन रोड, और अगर सिंगल लेन होगी तो कितनी विड्थ की होती है वो? अगर आपने आईआरसी लोडिंग अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। 3.5. मैम यहाँ पे लिखा है 5.3 मीटर। Class A loading is applicable only for bridges having carriageway width of 5.3 meter and above. इसलिए लिख रहा है वो क्योंकि इसने लिखा है ना ऊपर कि AA loading shall be considered to occupy 2 lanes. हम केवल जब AA ट्रैक व्हीकल को लेते हैं तो हमको कॉम्बिनेशन बनाना मुश्किल पड़ता है, लेकिन हम AA लोडिंग लेते हैं तब हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं विद 70R, क्योंकि ये कहना चाहता है कि जब हम इसको जो हमारा मिलिट्री टैंकर चलाते हैं तो इट कवर्स 2 लेन, both the lanes. The minimum clearance between the road face of the curb and the outer edge of the wheel or track C shall be 1.2 मीटर। वो ये कहना चाहता है कि जब हम वैसे भी जनरली, आप एक बार सोचो जब आप कोई व्हीकल चलाते हो तो फुटपाथ से कुछ एक क्लियरेंस पे चलाते हो, हम फुटपाथ से सट के कभी भी कोई गाड़ी नहीं चलाते। तो हमारा ना माइंड ही सेट वैसा होता है, हमको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, उसको मेजर भी नहीं करना पड़ता कि कितनी दूरी से चलाना है। जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतनी वो अपना क्लियरेंस खुद मेंटेन रखती है। साइकिल हो सकता है फुटपाथ के बहुत पास से चले, लेकिन यही अगर मैं कार चला रही हूँ तो इट विल बी, द क्लियरेंस विल बी मोर। सिमिलरली अगर मैं कोई टैंकर पास कर रही हूँ किसी रोड से तो क्लियरेंस यहाँ पे उसने दिया है, इट शैल बी 1.2 मीटर। ठीक है, तो यहां मैं नीचे आ रही हूँ, रेफरिंग टू फिगर 11.6, सिंपली सपोर्टेड स्लैब है एंड इट इज 10.4। अब आप मुझे ये बताओ, अब ये जो 10.4 दिखा रहा है और ऊपर जो ये मुझे दिखा रहा था 9.5, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप मुझे कोई समझाओ, इन दो फिगर में क्या डिफरेंस है? क्योंकि नीचे स्पैन दिया है 10.4 और वो 10.4 आपको मिला है इफेक्टिव स्पैन से। ठीक है, स्क्रीन स्क्रीन, हाँ स्क्रीन शेयर अब स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैंने जो क्वेश्चन आपसे ऊपर पूछा था ये समझ में आया क्या? तो अब आप मुझे ये समझा सकते हो ये नीचे और इस पे फर्क क्या है? ऊपर इट इज 9.5 मीटर एंड this figure shows that L is 10.4 meter. Now what is the difference between these two figures? मैम ऊपर का अगर हम ये अच्छे से समझ गए तो आप समझ जाओ। मैम वो विड्थ है और ये लेंथ है। ये लेंथ है, इसका मतलब आपको ये समझ में आता है कि व्हीकल का डायरेक्शन अभी किस तरफ है। ये जो 4.76 है, इट इज द लेंथ ऑफ द व्हीकल और विड्थ ऑफ द व्हीकल। लेंथ It's the length of the vehicle. इट इज द लेंथ ऑफ द व्हीकल। ओके, तो ऐसा सब लोग समझ रहे हैं? मैं आगे बढ़ जाऊं कि ये मुझे अच्छे से समझाना चाहिए? ये सबको समझ में आ रहा है Yes, कि ma'am. मैं यहाँ शिफ्ट क्यों हो गई? Yes. ऑनलाइन में हमारे सामने एक काम करती हूँ, मैंने इसको मिनिमाइज किया है। अब ये मिनिमाइज होके 1 मिनट कहाँ गया देखती हूँ मैं, ये यहाँ है।
ये जो मेरे सामने वीडियो ये आपको दिख रहा है क्या? हाँ हाँ मैम। दिख रहा है ना? ठीक है, मैं इसको प्ले करती हूँ। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर मैं इसको फिर से समझाती हूँ। ठीक है, अब मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको। ये देखो, ये मुझे दिखाई दे रहा है क्रॉस सेक्शन, विच आई वाज टॉकिंग दैट दिस इज 9.5 मीन्स द carriageway width is 7.5 plus 1 plus 1 it is 9.5. ये वाला क्रॉस सेक्शन है जो मुझे दिखाई दे रहा है, और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल बी लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं इसको ये जो डिस्टेंस है कॉलम टू कॉलम और पियर टू पियर, this distance is 10.4. This is the effective span, means it can be center to center of support or a clear span plus effective depth. Okay, so this is 10.4, और जब ये 10.4 यहाँ पर रखा है, the direction of flow will be parallel to 10.4. तो मान लो अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब मिलेगा मुझे? जब हम जो मेरा ट्रैक व्हील है, it will be placed just at the center of the slab. अगर मैं ये मेरा span है, it is 10.4, तो I'll just keep my this tracked vehicle at the center of this road. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ सेंटर में रखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो मुझे इसको कैसे रखना है? इसका फ्लो इस तरफ है, सो पैरेलल, द लेंथ विल बी पैरेलल टू द इफेक्टिव स्पान। ठीक है, ओह, तुमने मुझे क्या बोला था? एंटायर स्क्रीन पे जाऊँ ना मैं? मैम जब आप प्रेजेंट करोगे तभी 3 ऑप्शन आएगा, तो टॉप वाला ऑप्शन वुड बी एंटायर स्क्रीन। हाँ, तो पर एंटायर स्क्रीन से मैं वापस उस पर नहीं जा पा रही। इसका मतलब यही एक ऑप्शन है, एंटायर स्क्रीन से नहीं जा पाऊंगी मैं। मुझे टैब से देखती हूँ, मैं टैब से नहीं जा पा रही मैं, मुझे वैसे ही जाना पड़ेगा विंडो से, और विंडो से अगर मैं गई तो मुझे यही फोल्डर वापस मिलता है। Ma'am, you can share that PDF to someone and they can present it. या हाँ, वो भी है। It will be better. अच्छा, स्टॉप शेयरिंग के साथ हाइड भी है। मैं एक काम करती हूँ, इसके बाद में एक बार हाइड यूज करके देखती हूँ। अभी तो मैं फिर से खोलती हूँ इसको। ये यहाँ से नहीं जाना चाहिए और ये यहाँ से चला जाता है।
मेरा यही पेज दिख रहा है ना जो क्वेश्चन वाला, इनके राजू वाला? Yes, ma'am. हाँ, यस, हाँ हाँ मैम, वही वही देख। ओके। ऐश्वर्या मैडम, आप एक्चुअली इनको पढ़ाते हैं तो आप भी इनकी तरफ से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मे बी अगर स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो पता है मैडम, ये मुझे बता रही है, तो यू कैन, हम कुछ स्किप भी कर सकते हैं। हाँ हाँ It is मैम, not- ठीक है। एक्चुअली मैंने पहले ये सोचा था कि मैं पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करूंगी जैसे मैं क्लास में सॉल्व करती हूँ, हाँ, लेकिन फिर फिर वो आपने टाइम कहा था लगता कि है नहीं मैम। कंसेप्ट चाहिए, तो बेसिकली मैम इनको डिजाइन का जो ये आरसीसी वाला जो पोर्शन है डिजाइन का आता है, क्योंकि हमने काफी बार टी स्लैब भी डिजाइन किया, डेस्क स्लैब भी डिजाइन किया। बेसिकली जो इसका जो प्रीस्टेज वाला पोर्शन है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं ये लोग भी। ठीक है। डायरेक्टर सर ने 3 बजे मीटिंग रखी, सर का कोई भरोसा नहीं है सर कब मीटिंग रखेंगे। अच्छा, तो आपको Page जाना है 271. क्या? नहीं, अभी तो मैं पहले ही खत्म करके जाती हूँ, तो मुझे उस पर प्रीस्टेस पे आना है जल्दी से। तो मैम अगर आप ये डिजाइन कॉन्सेप्ट, वैसे तो स्टूडेंट्स यू नो ऑल द डिजाइन कॉन्सेप्ट्स राइट फॉर द आरसी स्ट्रक्चर्स, हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट? मैम एनालिसिस में डाउट नहीं है? हाँ, एनालिसिस के अंदर डाउट नहीं है? एनालिसिस में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो फिर इसमें मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, I'll skip this। ठीक है, तो आपको ये पता है कि कहाँ से आया है, नाउ हाउ आई हैव कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट, ये आपको पता है इसको कैसे रखा है 1.2 डिस्टेंस पर, और फिर ये डिस्पर्शन कैसे हुआ है। अगर नहीं तो आप मुझे बताना है ना। और ये चीज आई थिंक सब जानते हैं ना। यस मैम। हाँ, ये सारा क्योंकि ये लोग खुद ही ने इन सब ने सॉल्व किया है ये सब क्वेश्चंस, मतलब अच्छा, हमने। हाँ, तो ये तो आपको समझ में आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेन पार्ट तो वही है जो एनालिसिस है, क्योंकि यहाँ से जो शुरू हो रहा है चेक फॉर मिनिमम सेक्शन मॉडुलस, यहाँ से जो शुरू हो रहा है दैट इज, ये इसमें आपको न समझने जैसा इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि ये सब कुछ सारे फॉर्मूले इन्होंने कोर्ट से उठाए हैं। मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ से लिए हैं इन्होंने। स्टूडेंट जस्ट राइट इट डाउन, मैम जो बोल रही है, ओके, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हेन वी आर टेकिंग द लेक्चर्स। ये आपने कवर कर लिया है मैडम? मैम एक्चुअली ये डिजाइन, ये वाला सेम पोर्शन डिजाइन हुआ है, लेकिन उन्होंने उनको मतलब क्योंकि इन लोगों ने वो प्रीस्टेज भी इनका साथ में चल रहा है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, सो इट्स थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो मैं सोचा कि चल अगर आप थोड़ा शॉर्ट में बेटर बता पाएंगी, इसलिए आपसे कांटेक्ट किया था। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो सारे फॉर्मूले हैं ना मैडम, एक्चुअली ये इसलिए नहीं मिले होंगे बच्चों को कि IRC एक तो 21, IRC 6, IRC 18 और IS 1343, तो ये 4 कोड है जिसके अराउंड ये सारे चल रहे हैं। और बाकी जो फॉर्मूले हैं जैसे ये दिया है ना मिनिमम सेक्शन मॉड्यूलस, ये फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा कहीं, ये फॉर्मूला नहीं है। ये ठीक है FCT FCW इट इज गिवन, पर ये दिया है लॉस रेशियो का है, लेकिन ये नहीं दिया है ये फॉर्मूला का है। हाँ, ये फॉर्मूला कहीं नहीं दिया। तो ये नहीं मिला होगा बच्चों को, तो इट मे बी इन बुक। तो मैंने अभी ये प्रेस्टेस की बुक भी सर्च की है, इसमें नहीं है, लेकिन ये मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ। जैसे क्योंकि ये सब कुछ इसका खेल है, देखो सिंपल है। अगर मैं प्री स्ट्रेस समझने की कोशिश करूं तो जब आप फोर्स लगाते हो तो देयर विल बी 2 फोर्सेस, क्योंकि जब टेंडन हम लगाते हैं इट कैन बी कॉन्सेंट्रिक और इट कैन बी इसेंट्रिक। तो अगर मैं टेंडन को सेंटर बीम के एक्सिस पर लगाऊं, सेंट्रल एक्सिस पर लगाऊं, देन इट विल बी कॉन्सेंट्रिक। और जब मैं ये फोर्स लगा रही हूँ तो फोर्स विल बी डायरेक्ट फोर्स। सिंपल है, आप अगर बीम को देखोगे और उस पर आप दोनों एंड पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करोगे देन इट विल बी डायरेक्ट फोर्स। डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मीन्स आप स्ट्रेस की बात कर रहे हो देन इट इज P/A मीन्स लोड अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस आ गई। लेकिन जनरली इसे हम जो टेंडन लगाते हैं
हम टेंशन साइड पर लगाते हैं। तो टेंशन साइड मीन्स ये इसेंट्रिक हो गया, इट इज नॉट एट द centroidal axis of the beam, it is not provided at the centroidal axis of the beam, then it is provided at the bottom face of the beam. अगर मैंने bottom face of the beam पे provide किया है तो उसमें कुछ eccentricity develop होगी। eccentricity develop हुई, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें moment develop हो गया। तो there will be now two forces। आप जब टेंडन पे फोर्स लगा रहे हो, then it is longitudinal force, means stresses are developed as tensile stresses, and then it will be equals to P by A। लेकिन इसके साथ में मोमेंट भी डेवलप हुआ, क्योंकि पूरे बीम का जो सेंट्रॉइड है इट इज एट द सेंटर, मीन्स अगर मैं कंक्रीट का कोई सेंट्रॉइड पकड़ूं तो इट विल बी एट द सेंटर ऑफ द बीम, पर अगर मैं टेंडन का पकड़ूं तो वहां से और कंक्रीट के जो सेंटर एक्सिस तक जो डिस्टेंस आ गई है मेरे पास, दैट इज ई, इसेंट्रिसिटी। तो उससे मोमेंट डेवलप हो गया, तो मोमेंट विल बी इक्वल्स टू लोड इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक मिनट, तो अब मेरे पास दो टाइप के फोर्सेस आए हैं। तो दो टाइप के फोर्सेस कौन से हैं? ये इसेंट्रिसिटी ऑफ केबल आया है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन दी ड्यूरिंग सर्विस लोड्स, ड्यू टू सर्विस लोड्स। तो P by A और P by Z। PE मीन्स M by Z। ये E इसने सब्सक्रिप्ट में लिख दिया है, बट इट इज नॉट हियर। P into E डिवाइडेड बाय Z। तो मेरे पास देखो चार फोर्सेस हो गए, मैं आपको केवल वो ही बता देती हूँ। आप ये बुक पढ़ेंगे ना, तो ये इससे आपके सारे फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाएंगे। ये कृष्णा राजू की बुक है, एंड दिस इज द बेस्ट बुक। इसमें आप लॉसेस वाला चैप्टर पढ़िएगा। बस यहाँ ढूंढना मुझे थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। बस ऑनलाइन पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ाने में बहुत बहुत डिफरेंस है। इसमें जो लास्ट में डिफ्लेक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो भी इसी बुक में, जो आपने देखे होंगे इस डिजाइन में एंड में है, वो भी इसी बुक में। ये आपको स्क्रीन शेयर दिख रही है ना, लॉसेस? हाँ हाँ मैम, स्क्रीन दिख रही है। हेलो, नहीं है ना? ये आएगी, कनेक्ट सेंड करती हूँ। अरे यार, मुझे जो दिखाना है वो नहीं मिल रहा है। देखिए मेरे पास पेज नंबर लिखा है, पेज नंबर 86।
ये आप देखिए इसमें एक क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन में अपने प्री स्ट्रेस का जो भी स्ट्रेस मैम थोड़ा सा ना वॉइस ब्रेक हो रहा है, आई थिंक नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू। एक मिनट, मैं एक नया ऑन कर लेती हूँ। Till then, students just write down your attendance in the chat box. Just a second, I'm just rejoining. Some network problems there. Is my voice is audible? Yes, ma'am, your voice is audible. एक्चुअली कब से मेरी आवाज नहीं आ रही पता नहीं। शेयर नहीं है ना स्क्रीन तुम्हारे से? हाँ मैम, शेयर्ड नहीं है। चली गई। ये अब दिखाई दे रही है? Yes, yes, ma'am. दिस इज द डायरेक्ट फोर्स। ये जो स्ट्रेस डायग्राम है, दिस इज द डायरेक्ट फोर्स, दिस इज मोमेंट। So I just want to ask that why this is negative and why this is positive? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्यों है? Depending upon the eccentricity of the cables. ये इसेंट्रिसिटी तो यहाँ है, दिस इज ई। आपने केबल यहाँ प्रोवाइड किया है। हाँ मैम, तो वहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रेस डायग्राम यहाँ देखो, यहाँ पे मैं एक बार और आगे समझा देती हूँ। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज डेड लोड स्ट्रेसेस में यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, लाइव लोड स्ट्रेस में यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, और इस सब का कॉम्बिनेशन ये है। तो आपने जब आपके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उसमें स्ट्रेसेस एट वर्किंग लोड में प्लस माइनस किया है, स्ट्रेसेस एट सर्विस लोड पे आपने प्लस माइनस किया, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी ऐसा क्यों किया है। ये तो हम समझ गए कि ये फॉर्मूले उसने लगाए हैं, और ये इसका एफ सपोर्ट और एफ इंटीरियर ये इसने निकाला है, ये आपके क्वेश्चन में भी निकाला है इसने। पर इसमें प्लस माइनस किस हिसाब से लगा है, ये तो मुझे सारे प्लस करना है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है। तो जब आप जब टॉप पर आप जब स्ट्रेसेस एट टॉप और स्ट्रेसेस एट बॉटम निकालते हो तो टॉप पे ये माइनस है और यहाँ पे बॉटम पे ये दोनों माइनस है। तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि why this is minus. That is negative moment. या दिस इज नेगेटिव मोमेंट, और यहाँ मुझे नेगेटिव मोमेंट बॉटम पे, मुझे यहाँ टेंशन बॉटम पे मिल रहा है, यहाँ मुझे टेंशन टॉप पे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने इस पे स्ट्रेसेस डेवलप किए और कॉन्क्रीटिंग कर दी, आफ्टर सेटिंग क्या हुआ, जब आपने इसको रिलीज कर दिया तो बेंड अपवर्ड होगा, जो टेंडन है वो अपवर्ड बेंड होगा, क्योंकि आपने उसको एकदम से रिलीज किया है। तो वो अपवर्ड बेंड होने के कारण टेंशन उसके टॉप पे चला गया। तो नेगेटिव इज एट द टॉप एंड पॉजिटिव इज एट द बॉटम। लेकिन आप सिंपल कंक्रीट में देखिए, जब आप फोर्स लगा रहे हैं, मींस इफ योर
if this beam is subjected to loading, then what will happen? Top is compressive force and bottom concrete will take the tensile force. So सारे ऊपर पॉजिटिव है, तो जब आप इसको प्लस करोगे तो आपको ये मिलेगा, और जब आप बॉटम पर निकालोगे, ये देखो आपके क्वेश्चन में है, गिवन है, ठीक है। फिर है चेक फॉर अल्टीमेट फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ। तो जब हम बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए निकालते हैं तो ये वाला जो फॉर्मूला है M इक्वल्स टू FPB/APS D माइनस 0.42 XU। तो D माइनस 0.42 XU, 0.42 XU तो आप लोग समझते हो फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट दिस वैल्यू। मैम स्क्रीन पे 0.42 x तो कुछ दिख रहा नहीं है। यहाँ नहीं, यहाँ ये मैंने खत्म कर दिया, मैं वापस आऊं। अरे मैं एक्चुअली अपना काम बचा रही थी वापस जाने का, इसको मुझे फिर स्टॉप करना पड़ेगा, देन आई हैव टू कम बैक अगेन टू come back to अरे राम, कहीं मैंने डिलीट कर दिया। मुझे फिर से वापस मेरे क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, और ये विजिबल है क्या? नहीं मैम, स्क्रीन विजिबल नहीं है। मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगी। मिनिमम सेक्शन मॉडुलस के मैंने आपसे कहा था, इसके कोई फॉर्मूले कहीं अवेलेबल नहीं है। मिनिमम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ये फॉर्मूले भी ये फॉर्मूले आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये फॉर्मूले भी इसने कहीं बुक से उठाए। इसेंट्रिसिटी ऑफ केबल का ये जो फॉर्मूला है ई निकालने का, इट इज नॉट गिवन इन द बुक एज वेल एज इन द कोड ऑल्सो। मैं आपको ये समझा रही थी, चेक फॉर स्ट्रेसेस एट सर्विस लोड, इसने ई क्यों निकाला है और इसने Z क्यों निकाला है, P क्यों निकाला है, P फोर्स इसलिए निकाला है क्योंकि ये सारी टर्म्स इसको कहाँ यूज आने वाली है, चेक फॉर स्ट्रेसेस एट सर्विस लोड। तो जब भी इसका पूरा एक ब्रिज तो तैयार हो गया है, लेकिन ही नीड्स P, ही नीड्स A, ही नीड्स Z, और वो सारे कैलकुलेशन के लिए जो उसने ऊपर फॉर्मूले लगाए हैं, ये तो मुझे किसी कोड में नहीं मिला, ये कोड ये आपको यहीं से लेना है, ठीक है। mg इज डेड लोड एंड mq इज लाइव लोड, जो आपने एनालिसिस में फाइंड आउट किए थे। इससे आपने स्ट्रेसेस एट वर्किंग लोड निकाल लिया और स्ट्रेसेस एट ट्रांसफर निकाल लिया, ये जो फॉर्मूला अभी मैं प्लस माइनस करके आपको समझा रही थी। नाउ चेक फॉर अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। अगर मुझे ये स्ट्रेंथ निकालनी है तो IS 1343 में ये फॉर्मूला है, पेज नंबर 51 पर ये फॉर्मूला दिया है, पेज नंबर 51 पर। और ये इसने सिंपल कैसे निकाला है, जैसे हम आरसीसी में निकालते हैं। आरसीसी में हमारे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, वहाँ से टॉप कंप्रेशन फाइबर तक जो न्यूट्रल एक्सिस से डेप्थ होती है वो कहलाती है, वो कितनी होती है, 0.42 XU। सेम कंप्रेसिव स्ट्रेस का हमने स्ट्रेस डायग्राम अगर आपको याद होगा, आपने आरसीसी में यूज किया है, तो लीवर आर्म उसमें कितना होता है, D माइनस 0.42 XU, और लीवर आर्म मल्टीप्लाइड बाय दी फोर्स
Now force will be what? Force is stress into area. This is force. तो force into perpendicular distance is the moment. ये इसने formula बनाया है. It is also given on page number 51 of IS 1343. ठीक है, वहां से मैम एक डाउट मुझे भी था एक्चुअली। ये जो आपने फॉर्मूला दिया ना एमयू का, सेम चीज आईआरसी 18 में इट्स इन अ डिफरेंट फॉर्म। IRC 18 में क्या दिया है? आईआरसी 18 में मुझे भी एक बार ओपन करना पड़ेगा। हाँ, एक बार देखो ना ओपन करके। फॉर्मूला देखो अलग हो सकता है लेकिन उसका आंसर सेम आएगा। हाँ, मतलब मेरे को वो एक्चुअली यही था, यही सेम चीज इन लोगों ने भी मुझसे पूछी थी कि आईआर 1343 भी यूज कर सकते हैं या आईआरसी 18 यूज कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या यूज करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही कोड उसी के लिए बनाए गए हैं और दोनों ही कोड यूज किए जा सकते हैं और दोनों ही कोड में वेरिएशन आपको बहुत कम मिलेगा। क्योंकि ये आईएस कोड जब हम बनाते तो देखो, आप एक चीज और भी देखना उसको ध्यान से कि जहां परमिसिबल लिमिट आईएस 1343 में कुछ दिए, हो सकता है कि 18 वाला दी हो। और एक बार और चेक करना कि उसका वर्जन कौन सा है। अगर आईएस 1343 का वर्जन लेटेस्ट है तो हमको उसको फॉलो करना चाहिए। ओके मैम, ये आईआरसी 18 2000 में है। अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ है इट इज गिवन एज mu इज इक्वल टू 0.9 डेप्थ db देन एरिया इनटू फोर्स, ऐसा है। हाँ, तो ये बुक में भी दिया है। ये जो अभी मैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बुक खोली थी ना, उसमें भी यही फॉर्मूला दिया है, तो आपको सेम मिल सकता है। और 1343 यूज करना है तो ये भी वो डिपेंड करता है, उससे कोई फर्क में ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। Okay. ये तो इसने फॉर्मूला बनाया है, इट इज जस्ट अ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑफ हम जो आरसीसी में यूज करते हैं दैट वो यूज किया है इसने। तो ये भी कोई इशू नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या, डिजाइन यू हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस। I mean, these students were having such queries to ma'am. Students are having problem in where? So students, if you guys any जैसे तुम लोगों को pre-stress में problems थे, मैं अगर डिजाइन पार्ट छोड़ दूं स्टूडेंट्स, अगर मैं ये डिजाइन पार्ट अब छोड़ दूं, क्योंकि नाउ इट इज ओनली जस्ट टू सब्स्टिट्यूट सम वैल्यूज इन दी फॉर्मूलेज एंड फॉर्मूलेज आर ऑल फॉर्मूलेज आर अवेलेबल इन दी। इसके बाद जितने भी फॉर्मूले वो IRC 112 में पेज 89 पर है। ये मैंने सारे ढूंढ लिए। एंड ब्लॉक 34 35 IRC 18 में है। प्री स्ट्रेस बुक में कुछ फॉर्मूले हैं डिफ्लेक्शन के, पेज नंबर 100 पर। तो फॉर्मूले तो मिल गए, ठीक है, लेकिन अब इसका बेसिक आपको कहाँ नहीं समझ में आया, यू जस्ट ड्रॉप दैट ओनली। तो मैं इसके स्टेप्स को ना देखूं। ये स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को जो भी डाउट है प्री स्ट्रेस से रिलेटेड, जस्ट आस्क टू मैम। मैम कंक्रीट में फटीग कंसीडर करते हैं? कंक्रीट में ही तो फटीग कंसीडर करते हैं। कंक्रीट यानी तुम किस चीज की बात कर रहे हो? अरे नॉर्मल ब्रिज। देखो, फटीग का मतलब क्या होता है कि हम नंबर ऑफ साइकिल से जो लोड लगाते जाते हैं और उसके कारण जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हम फटीग कहते हैं। तो जनरली व्हीकल्स के कारण कंटिन्यूअस लोडिंग होती रहती है तो फटीग होता है, पर हम जनरल रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी फटीग कंसिडर करते हैं। तो जहाँ कंक्रीट होगा, फटीग इज नॉट फॉर ओनली कंक्रीट, इट कैन बी फॉर स्टील ऑल्सो, इट कैन बी फॉर एनी मटीरियल। Mechanical engineer also use this word fatigue and we civil engineers also use fatigue, क्योंकि उनका भी मेटल है और हमारा भी मटेरियल है, तो दोनों में फटीग पॉसिबल है, दोनों में फटीग होना। हम फटीग को कभी छोड़ नहीं सकते। मैम ये एनके राजू में कहाँ पर भी ऐसा कुछ है फटीग का, मतलब लोग कंसिडर किएंगे डिजाइन में? तुम फटीग में क्या समझना चाहते हो? क्योंकि फटीग एक अलग से तुमको चैप्टर नहीं मिलेगा। कुछ डिजाइन से कम के फटीग की वजह से, मतलब परमिसिबल स्ट्रेसेस। फटीग कोई अलग से चैप्टर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, वो प्री स्ट्रेस में हो या फिर आरसीसी में। फटीग का मीनिंग तुम समझ रहे हो ना? फटीग का मीनिंग समझते हो? हाँ, यस मैम।
फटीग का मीनिंग अगर तुमको समझ में आता है तो फटीग एक अलग से कहीं चैप्टर नहीं है और उसका कोई कैलकुलेशन भी नहीं है. फटीग अगर तुमको मान लो स्ट्रक्चर को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो फटीग को रेजिस्ट कर सके, तो व्हाट यू विल डू. अगर हम उस टर्म में सोचे तो तुम्हारी शायद फटीग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. फटीग इज जनरली अ साइक्लिक लोडिंग, है ना. और साइक्लिक लोडिंग से बचने के लिए व्हाट यू विल डू, हम जो भी लोडिंग के लिए डिजाइन करते हैं इट इज स्टैटिक, लेकिन जब हम ब्रिज डिजाइन करते हैं इट इज साइक्लिक लोडिंग. तो साइक्लिक लोडिंग के लिए मुझे स्पेशली क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू इंक्रीज दी कंक्रीट ग्रेड. क्या मुझे कंक्रीट ग्रेड, मैं जितनी ज्यादा कंक्रीट की ग्रेड बढ़ाती हूँ, विल इट बी दी कंक्रीट बिकम्स मोर डक्टाइल और ब्रिटल. ब्रिटल. ब्रिटल Little. ब्रिटल, है ना. तो मैं बहुत हाई ग्रेड पे नहीं जा सकती मैं ये आंसर, क्योंकि मैंने आपको बोला और उसके बाद मुझे आपकी तरफ से क्वेश्चन नहीं मिला, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा. अगर मैं ग्रेड बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो द स्ट्रक्चर विल बिकम ब्रिटल. तो मुझे डक्टिलिटी मेंटेन रखना है, तो मुझे ग्रेड बढ़ाना है. उसके बाद मुझे अगर एक्चुअली साइक्लिक लोडिंग हु विल रेजिस्ट, स्टील विल रेजिस्ट और कंक्रीट विल रेजिस्ट. बोथ विल रेजिस्ट, है ना. तो मुझे अगर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो जब हम बात करते हैं फैक्टर लोड की, जब हम बात करते हैं सर्विस लोड की, सर्विस लोड क्या लोड, कौन सा लोड होता है, दैट टेक्स केयर ऑफ डिफ्लेक्शन, टेक्स केयर ऑफ वाइब्रेशन, टेक्स केयर ऑफ क्रैकिंग विड्स. तो जब हम इसके लिए कंक्रीट में फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो 33% ऑफ लोड किसके लिए जाता है, स्टैटिक के लिए जाता है. और उसके ऊपर का जितना परसेंटेज होता है वो साइक्लिक लोडिंग के लिए जाता है. हम हमारे घर में भी कई बार उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, हम फर्नीचर रखते हैं, वापस रखते हैं, दिस इज ऑल्सो अ साइक्लिक लोडिंग. और ब्रिजेस भी साइक्लिक लोडिंग के लिए. तो उसके कारण जो फटीग डेवलप हो रहा है, दैट फटीग वाज टेकन इनटू अकाउंट अगर मैं साइक्लिक के लिए डिजाइन करती हूँ. तो 33% के ऊपर जो डिजाइन मेरी होती है फॉर डक्टिलिटी, इट इज फॉर द फटीग. So मैम तो फटीग कंसीडर करेंगे तो फिर 33% ऑफ द स्ट्रेंथ लेने का. क्या इफ फटीग कंसीडर कर रहे हैं तो ओनली 33% ऑफ द स्ट्रेंथ कंसीडर करना है डिजाइन में. मतलब स्ट्रेंथ बढ़ा के लेना ना 33%. मतलब M20 के अगर मैं 100% के लिए डिजाइन कर रही हूँ तो उसमें से 33% मेरा स्टैटिक के लिए डिजाइन होता है. तो मेरा जो बाकी का स्ट्रक्चर, बाकी का परसेंटेज है, दैट गोज फॉर द साइक्लिक लोडिंग. समझ आया क्या. अगर मैंने मेरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, आप 100% के लिए डिजाइन कर रहे हो, उसमें से जो 33% गोज फॉर द डेड वेट, उसमें लाइव लोड नहीं है. आप केवल जो डिजाइन कर रहे हो दैट, और जो लाइव लोड है, इम्पोज लोड है, दैट इज डेड, दैट इज नॉट मूवेबल. सो द रेस्ट ऑफ द आउट ऑफ 133 अगर आप निकाल दो, तो जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज है उसके लिए जब हम डिजाइन करते हैं, दैट गोज फॉर द फटीग. ये मैं कब बात कर रही हूँ पता है, व्हेन आई एम डिजाइनिंग इट फॉर अ नॉर्मल स्ट्रक्चर. पर जब मैं किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रही हूँ कंसिडरिंग अर्थक्वेक लोड, कंसिडरिंग विंड लोड, जब मैं किसी बड़े स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रही हूँ तो मैं साइक्लिक लोडिंग के लिए डिजाइन कर रही हूँ, दैट विल बी काउंटेड इन फटीग. तो अलग से फटीग कुछ लेना जरूरी के लिए हम अलग से नहीं, फटीग नाम से अलग से कोई डिजाइन नहीं होती. ओके. तो मैम कोई समझो मैंने डिजाइन किया ये इनके राजू का यही सम, तो मैं ये ऑथर को पूछ सकता हूँ कि आपने फटीग कंसीडर किया कि नहीं, तो वो क्या बोलेगा. पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसने फटीग, मैंने कहा ना, अपने आप आ गया. मतलब फटीग इज देयर. फिर मैं देखो, उसको पूछूं आपने किधर किया, मेरे को दिखाओ. तो सब जस्ट मतलब जस्ट फॉर कन्वर्सेशन. आई एम सॉरी. नहीं तुम यही तो कंफ्यूज हो रहे हो. फटीग के लिए कोई अलग से डिजाइन नहीं होती है. मैम तो मतलब फटीग के लिए कोई अलग से डिजाइन नहीं होती है.
मतलब मैं कैसे प्रूव करूं कि मेरे को जो क्वेश्चन पूछने वाले फ्यूचर में मैंने कंसीडर किया तुमसे है। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं कि तुमने इसमें फटीग के लिए डिजाइन किया है, ऐसा क्वेश्चन। मैम मैकेनिकल इंजीनियर्स को पूरा के पूरा फटीग का पूरा के पूरा वो टॉपिक होता है साइक्लिक लोड का डिजाइन। मेरी अपनी पीएचडी भी फटीग पर है, मेरी अपनी पीएचडी भी फटीग पर है, और फटीग के लिए मैंने कोई अलग से कोई डिजाइन नहीं की है। जो मैंने नॉर्मल मेरी बीम डिजाइन की है, वैसे ही डिजाइन जैसे हम जनरल बीम डिजाइन करते हैं वैसे ही डिजाइन की है। एक मिनट, मैंने वैसे ही डिजाइन की है, पर जब मैंने उस पर लोडिंग लगाई थी तो लोडिंग मैंने उस पर साइक्लिक भी लगाई है, फटीग भी लगाई है और नॉर्मल स्टैटिक लोड भी लगाया है। अब इन तीनों का लोड देखने के बाद मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि ये साइक्लिक लोडिंग को रेजिस्ट कर पा रहा था कि नहीं, इतने ही ग्रेड। अगर ये कर नहीं पा रहा था तो व्हाट आई शुड डू, आई शुड इंक्रीज दी टेंशन रेनफोर्समेंट और आई शुड इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द कंक्रीट। तो वो डिपेंड करता है। फटीग के लिए मैंने कोई अलग से डिजाइन नहीं की थी, फटीग का टेस्ट लगाया था, डिजाइन उसकी कोई अलग से नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर आपको क्रैक की डिजाइन करना है तो वो अलग से होती है। डिफ्लेक्शन का चेक आपको अलग से लगाना पड़ता है, क्रैक का चेक आपको अलग से लगाना पड़ता है, ये सारे सर्विसिबिलिटी, लेकिन आप डिजाइन अलग से नहीं करते हैं फटीग का। मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक कभी, मेरे इवन थीसिस में भी नहीं था। मुझे नहीं लगता फटीग का कोई अलग से, और आपसे कभी कोई ये क्वेश्चन नहीं करेगा आपने फटीग के लिए इसमें क्या किया, तो आप फटीग का लोड लगा के देखिए। अगर वो फटीग को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि यू हैव टू रिवाइज दिस सेक्शन। देखो, अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो, आप एक काम करो, आप एनालिसिस कैसे करते हो। आपने एक ब्रिज लिया, ब्रिज पे आपने लोडिंग की, और लोडिंग लगाने के बाद आपने उसका बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स निकाल लिया, आपने उसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाया। अब आपके पास मोमेंट है, शेयर है। हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी ऐसा ही है, इसमें आपने ट्रैक्ड व्हील रखा, मोमेंट निकाला, शेयर निकाला। जब आपका मोमेंट और शेयर आ गया, मोमेंट और शेयर के आने के बाद आपने उसको डिजाइन किया, डिजाइन फॉर दैट मोमेंट, आपने स्टील निकाला, आपने डेप्थ ऑफ कंक्रीट निकाला। अब आपको ये चेक करना है कि जब आपके इस ब्रिज के ऊपर से 10 बार एयर ट्रैक्ड व्हीकल निकलेगा तो क्या ये फटीग रेजिस्ट कर पाएगा, क्योंकि तभी तो फटीग आएगा। आपने फटीग के लिए अलग से कुछ नहीं किया। आप समझे कि नहीं मेरी बात? हाँ मैम ठीक है, तो तो फिर पता कैसे चलेगा कि कितने साइकिल्स तक ये रेजिस्ट कर सकता है? मतलब ये आप टेस्ट करके देखोगे, टेस्ट ही करना है और कुछ आपको नहीं पता। ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है। यू डोंट नो इन द बिगिनिंग दैट हाउ मच साइकिल इट कैन रेजिस्ट। आपको शुरुआत में नहीं पता, आपको कब पता चलेगा? व्हेन यू विल एक्सपेरिमेंट इट। आप वो कंक्रीट लेंगे, आप उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स हाउ मच इट कैन रेजिस्ट। और फिर ये एक्सपीरियंस से आपको पता है कि दिस टाइप ऑफ कंक्रीट एंड दिस टाइप ऑफ स्टील रेजिस्ट दिस मच टाइप ऑफ लोड। अभी जैसे उसने थिकनेस 200 mm से शुरू नहीं की थी डिजाइन, उसने 500 mm, अजम्पशन क्या रखा? 50 mm पर मीटर। 50 mm वो 2 मीटर के लिए रख सकता था, 10 मीटर के लिए रख सकता था। इट इज ड्यू टू द एक्सपीरियंस ही हैज टेकन सम थिकनेस, इज अज्यूम्ड सम थिकनेस। तो हम ऐसे एक्सपीरियंस से पहले अज्यूम कर लेते हैं, और फिर जब स्ट्रक्चर हमारा प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है, देन वी अप्लाई सम फोर्सेस एंड देन फाइंड आउट दैट हाउ मच stresses it can take during fatigue or cyclic loading। वही हमारा स्ट्रक्चर भी लेगा। मैम अगर टेम्परेचर मतलब कोल्ड और हीट ज्यादा एक्सट्रीम होता है और उसका डिफॉर्मेशन होता है कंटिन्यूसली, तो उसका मतलब वो तो उसमें तो लाइव लोड में नहीं आएगा, तो वो फटीग कैसे कंसीडर करेगा? फटीग ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। टेम्परेचर मेरे इसमें नहीं आता। अरे कैलकुलेशन में जब हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते तब हम टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करते, लेकिन टेम्परेचर मेरा एक पार्ट होता है, क्योंकि वो मेरा क्यूरिंग के वक्त भी होता है, तो मुझे टेम्परेचर के लिए अलग से चेक लगाने पड़ते हैं।
वो चेक है, डिजाइन नहीं है। ओके। और मैम इवन इफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, हम लोग ने वो हाँ। उसको टेंशन करके रखा है, एंड इफ आई मीन आगे जाके फ्यूचर में वहाँ पे मतलब अभी सीजन समर है and फिर आगे जाके विंटर आएगा एंड स्नोफॉल होता है और हाँ। टेम्परेचर की वजह से वो श्रिंक हो जाएगा, तो फिर हाँ। तो टेंशन कम हो जाएगा, तो आई मीन डिफॉर्म होगा बेसिकली, तो उसका कुछ है कुछ कैलकुलेशन प्री स्ट्रेस में या फिर प्री नहीं? स्ट्रेस में भी टेम्परेचर का कैलकुलेशन है, और एक्चुअली उसमें भी, क्योंकि देखो ये सब कुछ डिपेंड करता है बॉन्ड पे, क्योंकि हम जब एकदम से उस पर से फोर्सेस हटाते हैं, तो वो सारा जो फोर्स है इट ट्रांसफर इट टू कंक्रीट, एंड इट ट्रांसफर इट टू कंक्रीट थ्रू दी सरफेस, जो सरफेस है स्टील का और कंक्रीट का, उसके बीच के बॉन्डिंग से ट्रांसफर होता है। तो जनरली उस वक्त काफ़ी स्ट्रेसेस डेवलप होती होंगी कंक्रीट में, और इट में ऐसा होता होगा कि उसमें क्रैक्स डेवलप हो। उस वक्त जो क्या टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमको कंसिडर करना पड़ता है, पर वाइल डिजाइनिंग वी डोंट टेक द टेम्परेचर, पर ड्यूरिंग पूरा डिजाइन होने के बाद एक्चुअली दीज आर ऑल सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, दीज आर ऑल ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, तो हम ये सारे चेक टेम्परेचर के तब लगाते हैं। ओके। हाँ मैम, कॉलम डिजाइन करते हैं तो उसका जो रीइंफोर्समेंट होता है हमेशा सिमेट्रिक ही देते कि नॉन असिमेट्रिक भी देते हैं? एक मिनट, हाँ बेटा, मैं एक मीटिंग बस जस्ट ऑन कर देती हूँ, 1-2 मिनट लगेंगे मुझे। एक 2 मिनट रुकना बेटा। हाँ, आप फिर से पूछो, सॉरी बेटा। हाँ यस मैम, कंक्रीट का कॉलम का जो रीइंफोर्समेंट होता है वो हमेशा सिमेट्रिक ही देते कि नॉन असिमेट्रिक भी देते? कॉलम का जो हमारा वो होता है ना सेक्शन, हाँ वो सिमेट्रिक ही रखना है कि हम इरेगुलर भी रख सकते हैं, ऐसा ना? मतलब नहीं, मतलब स्टील बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो लाइक दोनों साइड पे लाइक 3 देंगे क्या? एक साइड पे 3 एक साइड पे 4 है? देखो कॉलम में हम कुछ भी कर सकते हैं, कॉलम में जनरली टी सेक्शन भी डिजाइन होते हैं, ओके मैम। तो कॉलम का ऐसा कुछ नहीं है। कॉलम में अगर हम चाहे तो दोनों, एक मिनट, हाँ मेरा मेरा ध्यान एक मिनट, एक मीटिंग में भी है, पर मैं ऑन नहीं हो पा रही हूँ। तुम्हारा क्वेश्चन यही था ना कि कॉलम है और कॉलम का जो लेटरल डायमेंशन होते हैं हमारे, इट शुड बी स्क्वायर ओनली, और इट कैन बी रेक्टेंगुलर, और इट कैन बी इरेगुलर, है ना? हाँ वैसा ही था ना, लाइक वो स्टील भी देते तो स्टील भी कैसे दे सकता है ना यहाँ पे भी? इरेगुलर में स्टील क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं हम। ओके मैम। मैम वो मतलब मुझे ऐसा लगता है वो ऐसा पूछना चाहता है कि समझो एक कॉलम है कोई बिल्डिंग में, उसमें 12 बार्स रिक्वायरमेंट है, तो मैं, हाँ। हाँ, और 300 mm का मेरा विद है और और लेंथ कुछ है 800 mm, तो मैं 3 बार्स या 6 बार्स वैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ या ऑड इवन टाइप में फैशन में भी प्रोवाइड कर सकता हूँ? मतलब टोटल अगर 12 बार्स में मुझे रिक्वायरमेंट है, हम्म। हाँ 25 mm के 12 बार्स, तो फिर मैं 6 बार दोनों साइड में दे सकता हूँ कि फिर एक साइड में मैं 5 दूँ एक साइड में 7 दूँ, वैसा वैसा पूछना चाहता ऐसा हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये? नहीं नहीं, हम स्टील में कभी भी इरेगुलर नहीं दे सकते। स्टील तो हमेशा हमको सिमेट्रिकल ही प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि हम सेक्शन को कहीं से भी काटें तो हमको रेगुलरिटी मिलना चाहिए, तो वो आप नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में अगर मान लो जैसे 12 के 12 के मुझे 10 देने हैं, तो मैं 12 के 6 एक तरफ दूं
और एक साइड पर दूर, एक साइड पर 6 दूं। लेकिन अगर आप पॉसिबल नहीं कि 12-12 के दो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 4 बार 10 के दो और बाकी बार 12 के दो। लेकिन आपको आपने अगर एक तरफ पे 2 10 के रखे तो आपको दूसरी तरफ 2 10 के रखना पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 4 10 एक की तरफ रखे और फिर 12 के 4 आपने एक तरफ रखे, ऐसा भी नहीं कर सकते। आपको सिमेट्री उसकी फॉलो करना पड़ती है। मैम इस कॉलम पे ज्यादा मूवमेंट भी आ रहा है, तो भी लाइक सिमेट्री के देंगे? मोमेंट भी आ रहा है कॉलम पे, अगर मोमेंट भी आ रहा है तो कॉलम तो जनरली होते ही है, या तो वो एक्चुअली लोडेड होते हैं, बाय एक्चुअली लोडेड होते हैं, या यूनी एक्चुअली लोडेड होते हैं। तो उससे उससे हमारे बार पे नहीं फर्क पड़ता कि हमको फिर इसलिए इरेगुलर बार देना हमको सिमेट्रिकली है, भले ही उस पे मोमेंट आ रहा हो। ओके मैम। एनी मोर स्टूडेंट्स, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो related to bridge or related to any other civil engineering aspect? मैम Anyone? हाँ, मैम लॉन्ग ब्रिजेस जो होते हैं मैम, उस पे अगर मतलब जनरली मैंने देखा, मतलब कंक्रीट के डेक्स होते हैं मैम, लेकिन डेक ब्रिज नहीं होते मैम। मतलब सस्पेंशन या फिर प्री स्ट्रेस वैसा वैसे सब अलग अलग होते हैं। तो उस पे अगर डेक का रहेगा तो कितना मतलब मैक्सिमम तक जा सकता हूँ मैं? तुम स्पैन की बात कर रहे हो हाँ कि मैं कितने स्पैन के लिए डिजाइन कर सकती हूँ फिर, है ना? डेक हाँ स्लैब को मैं कितने स्पैन के लिए डिजाइन कर सकती हूँ? हाँ मैम, लॉन्गिट्यूडनल स्पैन। आई थिंक सो। मैं इसका करेक्ट आंसर तो नहीं मुझे, क्योंकि मैंने इसको कभी रीड आउट नहीं किया, बट अराउंड 50 to 100 मीटर के लिए शायद हम डेस्क स्पैन के लिए जाते हैं, यानी पियर के बीच में इतनी जगह होना चाहिए। पर आई थिंक सो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद दिस आंसर। मुझे लगता है एक बार आपको गूगल सर्च करना चाहिए कि हाँ इसके मैक्सिमम हम डेस्क स्लैब के लिए कितने स्पान के लिए जा सकते हैं। लेकिन तुमने जितने भी ब्रिजेस देखे हैं वो सब डेक टाइप स्लैब ब्रिजेस ही देखे, मैक्सिमम डेक टाइप स्लैब ब्रिजेस ही है अपने यहाँ इंडिया में। मैम, तो उसमें भी यही वाला लॉजिक लगाते हैं क्या, 50 mm पर मीटर वाला? मतलब अगर उसमें तो मैम 50-100 मीटर रहेगा तो मैम कितना बड़ा ज्यादा डेप्थ हो जाएगा मैम? एक बात बताओ, जो भी अजम्पशन है वो केवल और केवल आपको पढ़ाए जा रहे हैं। आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि मुझे कितना लेना है। तो मैम मतलब एक्चुअल में इटरेशंस करते रहेंगे नंबर अभी ऑफ। आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आपको कुछ तो चाहिए पकड़। वो एक्स आप कहाँ से निकालोगे? तो वो एक्स कहाँ से निकलता है? वो एक्स निकलता है, ये आप है ना, कुछ तो अजम्पशन चाहिए इसलिए। लेकिन आप एक इंजीनियर को पूछना कि क्या उसने ब्रिज 50 mm पर मीटर से निकाला है, तो वो हंसेगा आप पे। आप एक घर बना रहे हो किस छोटा सा, तो छोटे से घर में आपको किसी ने पूछा कि स्लैब की थिकनेस क्या रखूं, तो आप अज्यूम करोगे स्पान बाय 25, और यू विल अज्यूम दैट मैं स्पान के लिए चाहिए फॉर्मूला। अब जो भी आपने फॉर्मूला सीखा होगा क्लास में, तो आप ये थोड़ी ना लगाओगे। तब एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर बोलेगा कि स्पान तो बहुत छोटा है, आप 3 इंच स्लैब रख दो या फिर 4 इंच स्लैब रख दो। वाटर टैंक पे 3 इंच स्लैब में ही काम चला लेगा। उसको छज्जा बनाना है तो वो 3 इंच स्लैब में ही काम चला लेगा। लेकिन उसको बालकनी बनानी है तो 4-4.5 इंच के लिए उसको कहीं कैलकुलेशन नहीं करना। वैसे ही जब हम ब्रिज का कैलकुलेशन करते हैं तो थिकनेस हमारा अजम्पशन होता है, और वो चेक एंड में जाके डिफ्लेक्शन पे होता है। तो जनरली हम ऐसा करते हैं कि एंड में जाके डिफ्लेक्शन में चेक लगाते हैं, और वहां जाके जब फेल हो जाता है तब इंजीनियर किसी को जाके नहीं बताता कि ये गलत हुआ था मुझसे। तब वो केवल क्या बात करता है, उसको वापस से रीडिजाइन करता है और आपके सामने क्या रखता है कि ये थिकनेस होना चाहिए। ये सब एक ट्रायल एंड एरर मेथड, उसको भी नहीं पता और किसी को नहीं पता। लेकिन आप शुरू कहाँ से करोगे एज अ स्टूडेंट, इसलिए आपको कोई एक अजम्पशन पकड़ाया है कि 50 mm पर मीटर ले लो, अजम्पशन है। एंड मैम इन लोगों का एक और ऐसा क्वेश्चन था, एक्चुअली स्टार्टिंग में ही मेरे से था कि जो अपन ब्रिज डिज़ाइन करते हैं वो LSM से डिज़ाइन करना चाहिए या WSM से डिज़ाइन करना चाहिए?
अभी तो ब्रिज एलएसएम से डिजाइन होने लगा है। हाँ, क्योंकि मैम एक्चुअली मैं भी शुरू में बहुत कंफ्यूज थी, फिर मैंने भी इन लोगों को यही एक्सप्लेन किया। एक्चुअली बट जो लाइक बुक्स अवेलेबल है ना वो सब हाँ वर्किंग उसमें वर्क, हाँ मैम एक्चुअली, और कोई भी पुराने आप मतलब पुराने इन द सेंस की किसी के भी वीडियो लेक्चर्स भी आप देखो, दे हैव ऑल डिजाइन्ड इट इन WSM ओनली। और हाँ सेम एनके राजू भी देखेंगे, 5th एडिशन इज इन LSM और 4th एडिशन WSM। सो इट वाज, बच्चे भी बहुत कंफ्यूज थे कि जब साइट पर होता ही एग्जीक्यूट होती है चीज, तो वो LSM पे होती है या WSM पे एलएसएम से होती होती है, है। क्योंकि LSM पे। आजकल हम सॉफ्टवेयर पे यूज करने लग गए एलएसएम मेथड ब्रिज के लिए। अभी भी हम वाटर टैंक वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए सही जाते कर, हैं बाकी, लेकिन हम ब्रिजेस में यूज करने लग गए अब एलएसएम। पहले नहीं होता था एलएसएम, और एक्चुअली उसका कारण भी होता है कि जब हम बड़े स्ट्रक्चर में जाते हैं तब हमारा मेन एम होता है सेफ्टी का, सेफ्टी का, और हाँ। सेफ्टी के लिए फिर हमको इलास्टिक एनालिसिस के लिए जाना चाहिए, इसलिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज होती थी। अब तो एलएसएम यूज होने लग गई है। अब इकोनॉमी को भी ज्यादा रखते हैं और सर्विस एक्टिविटी पे भी हमारा ध्यान ज्यादा जाने लगा है इसलिए। और स्टूडेंट्स कुछ पूछना है मैम से? मैम प्रीस्ट्रेस कंक्रीट भी LSM ना? हाँ एक्चुअली देखो, मैम क्योंकि इसमें किधर भी मैम 1.5 फैक्टर इनटू मल्टीप्लाई किया ही नहीं है मैम, मतलब लोडिंग के वक्त भी वो स्ट्रेस निकलते हैं तभी भी। नहीं नहीं मैम वो नहीं ट्रांसफर लेवल वो सब लेवल में भी 1.5 किधर लिया ही नहीं 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 नहीं, तुम गड़बड़ कर रहे हो। तुम्हारा ये जो स्टेप थी ना, चेक फॉर अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ, चेक फॉर अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ, चेक फॉर अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, इसमें देखो उसने फॉर्मूला लगाया 1.35 VG प्लस 1.5 VG VQ। ये हमने कल भी किया था, कल या परसों जब हमने चेक करा था, तो जिसमें हम ये सेम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ चेक करे तो उसमें भी हमने 1.5 मल्टीप्लाई किया था। ये फैक्टर है ना, ये कहाँ से आया? ये फैक्टर है, ये फैक्टर उसने दिया है सर्विस एबिलिटी के लिए। ये जो इसने VG है ना, डेड लोड के साथ 1.35 मल्टीप्लाई किया, लाइव लोड के साथ 1.5 मल्टीप्लाई, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो वो एलएसएम में कर रहा है। हाँ और कोई और इसने स्टूडेंट? फॉर्मूला लगाया ना, देखो अल्टीमेट की बात कर रहा है, जब भी हम किसी चीज को अल्टीमेट में बोलते हैं या सर्विस लोड में बोलते हैं तब हम एलएसएम की बात कर रहे होते हैं, तब हम WSM की बात नहीं करते। WSM में आप वर्किंग लोड की बात करते हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो वहां भी होता है, लेकिन हम वर्किंग लोड की बात करते हैं। और ये पूरा सर्विसबिलिटी, देखो उसने सर्विसबिलिटी की चेक भी लगाया। अगर वो सर्विसबिलिटी की चेक लगा रहा है, इसका मतलब यू आर डिजाइनिंग इट इन एलएसएम। ये पूरी डिजाइन एलएसएम है। और कोई स्टूडेंट, किसी को कुछ डाउट? मैम ये कॉलम में ही हेलिकल टाइज प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली, कि हमसे वो ट्रांसवर्स टाइज ही प्रोवाइड करते हैं जब प्रैक्टिस अगर हम नहीं, अगर हम कॉलम सर्कुलर बनाए तो हेलिकल लगाते हैं, पर अगर हम कॉलम सर्कुलर नहीं है और रेक्टेंगुलर है तो हम हेलिकल रेनफोर्समेंट यूज नहीं करते, फिर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। लेकिन हेलिकल रेनफोर्समेंट लगाने से हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी 5% स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपने कभी देखा होगा उसको। तो जनरली जब हम सर्कुलर कॉलम डिजाइन करते हैं तो उस वक्त हम रिंग ना बनाते हुए हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके मैम। स्ट्रेंथ बढ़ती है उससे। स्ट्रेंथ बढ़ने का कारण होता है कि जो हेलिकल रेनफोर्समेंट होता है, स्पाइरल रेनफोर्समेंट होता है, उसके अंदर का जो कंक्रीट है वो स्पिल आउट नहीं होता जब उस पर कॉम्प्रेसिव फोर्स आता है, वो टाइट पकड़ के रखता है उसको। इसलिए हम हेलिकल प्रीफर करते हैं जब हम सर्कुलर कॉलम बनाते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैम, अगर लॉन्जिट्यूडनल लेंथ अगर 6 मीटर से कम है तो कलवर्ट डिजाइन करते हैं, बराबर मैम? लॉन्गिट्यूडनल लेंथ अगर 6 मीटर से कम है तो कलवर्ट डिजाइन करते हैं, ऐसा कलवर्ट मतलब वन वे एक्शन। अच्छा, कलवर्ट डिजाइन करते हैं, हाँ ठीक है। मैम, तो फिर अगर मतलब उसमें विथ मायने नहीं रखती है ना, मतलब विथ कितना भी हो, मतलब 1 लेन का रोड हो या दोनों साइड 5-5 लेन या 10 लेन का रोड हो, तो भी वो कलवर्ट जैसे डिजाइन करेंगे ना, वन वे एक्शन विड्थ का डिजाइन करेंगे। रिलेशन नहीं होता। विड्थ वैसे कलवर्ट की विड्थ 2 लेन से ज्यादा तो होगी नहीं, फिर भले ही वो आगे और बना सकते हैं, अरे हम कनेक्ट लेकिन कर अगर सकते हैं। अगर नेचुरल स्ट्रीम ही छोटी विद है तो फिर मैं उसको कैसे कर सकता हूँ? अगर नेशनल हाईवे मेरा 5-5 लेन या ऐसा है, 10 लेन का नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस वे,
तो मैं उसको कैसे डिजाइन करूँ, बॉक्स कन्वर्ट जैसे करूँ कि क्या करूँ फिर? देखो कन्वर्ट तो बहुत टाइप की है, एक तो पाइप कन्वर्ट है, बॉक्स कन्वर्ट है, तो और बॉक्स कन्वर्ट में भी कंटिन्यूअस बॉक्स कन्वर्ट है, मीन्स 2 बॉक्स कन्वर्ट, 3 बॉक्स कन्वर्ट, मल्टीपल बॉक्स कन्वर्ट। तो इट डिपेंड्स, अगर लोडिंग के लिए हमको किस पर जाना है तो जनरली हम जैसे लोडिंग पर डिपेंड करता है कि मुझे, और सॉइल पर भी डिपेंड करता है किस टाइप की सॉइल है, तो फिर मैं उस हिसाब से जा सकती हूँ। स्पैन पे डिपेंड करता है कि मुझे कलवर्ट डिज़ाइन करना है कि ब्रिज डिज़ाइन करना है, पर मुझे बॉक्स करना है या पाइप करना है ये डिपेंड करता है लोड पर, हाँ कैसा लोड। ठीक, थैंक यू। मैम विड्थ कभी मायने नहीं रखती ज़्यादा। मैम हाँ, एक स्लैब है जो खाली 3 साइड से सपोर्टेड है, एक साइड उसका फ्री है, तो वो किस में उसको कैसे डिजाइन करेंगे? एक एक स्लैब है, हाँ, उसका 3 साइड से कंटिन्यूस है वो, और एक साइड पे कुछ भी नहीं है। 3 साइड से कंटिन्यूस है और एक साइड फ्री है, हाँ ठीक है, और उस स्लैब को डिज़ाइन करना है ना? तो वो कैंटिलीवर होगी कि कैसी डिज़ाइन होगी ऐसा पूछ रहे हो? हाँ, यस मैम। वो तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो, डिपेंड अपॉन दी बीम, तुमने सपोर्टिंग बीम कितने स्पान पे प्रोवाइड किए। मान लो जो दो साइड है आमने सामने वाली जो कंटिन्यूअस है, अगर तुम्हारा स्लैब का स्पानिंग उस डायरेक्शन में है तो तुम्हारा जो फ्री एंड है उससे तुमको कोई लेना देना नहीं, उस तरफ तुम अगर बीम ना भी बनाओ तो भी चल जाएगा और वो कैंटिलीवर की तरह एक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा स्लैब का स्पानिंग ऐसा है कि जो एक कैंटिलीवर साइड है, साइड है और एक डिसकंटिन्यूअस साइड है जिस जहाँ सपोर्टेड है, तो फिर तुमको एज ए कैंटिलीवर डिजाइन करना पड़ेगा उसको। वो डिपेंड करता है कि स्पान कौन सा बड़ा है। एक ऐसा रेक्टेंगल है कि रेक्टेंगल में अपन समझ लो कि एक 2 बाय 5 मीटर का स्पान है, तो 2 मीटर वाली जो साइड है वो सपोर्टेड है बीम से दोनों एंड पर, 2 2 मीटर वाली, और 5 मीटर वाली साइड एक सपोर्टेड है और एक फ्री है। तो अब इसको तुम कैसे डिजाइन करोगे? कैंटिलीवर। अब इसको कैंटिलीवर। लेकिन अगर ऐसे ही उल्टा होता तो मैं उसको सिंपली सपोर्टेड डिजाइन करती। और कोई क्वेश्चन है? और कुछ स्टूडेंट्स वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं? मैम इस स्टील का बिहेवियर कंप्रेशन में भी एग्जैक्टली सेम है, टेंशन का जैसा होता है। नहीं बेटा, समझ नहीं आया, क्या पूछा तुमने? बिहेवियर ऑफ स्टील इन compression is exactly same as that of in tension. तो हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होता है वो एग्जैक्टली सेम आएगा दोनों में। नहीं सुनो, तुम कंफ्यूज कहाँ हो? सेम ही रहेगा ना, वो भले ही हमने कंप्रेशन में प्रोवाइड किया लेकिन वहां जाके ले क्या रहा है वो ले तो टेंशन ही रहा है ना, वहां जाके कंप्रेशन नहीं ले रहा है। हमने उसको कंप्रेशन साइड पे इसलिए प्रोवाइड किया क्योंकि उस तरफ टेंशन था। इफ कंप्रेशन नहीं आ रहा है स्टील पे, स्टील पे कंप्रेशन सब, अच्छा तुम ये कहना चाहते हो कि स्टील पे कंप्रेशन आ रहा है और एक स्टील पे टेंशन आ रहा है तो बिहेवियर में क्या चेंज होगा, ऐसा? नहीं मेरा क्वेश्चन है कि स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एग्जैक्टली सेम होता है कर्व में क्या चेंज होगा? हम लोग टेंशन का बनाएंगे और कंप्रेशन का बनाएंगे, नॉर्मली कंप्रेशन का मिलता नहीं है स्ट्रेस कर्व किधर भी। नहीं, मैं तुम्हारा क्वेश्चन तो समझ गई हूँ लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं पकड़ पाई। देखो मैं एक सिंपल सी बात करती हूँ कि रिइंफोर्समेंट मेरा टेंशन में है, कंप्रेशन में नहीं है। तो मैंने जो स्ट्रेस डायग्राम बनाया, तो स्ट्रेस डायग्राम मेरा टॉप पर है 0.446 एफसी के कंप्रेसिव स्ट्रेस, और जो 0 हो जाएगा पैराबोलिक होकर न्यूट्रल एक्सिस पर। ये मेरा स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है, व्हेन दी स्टील इज प्रोवाइडेड इन टेंशन साइड, ठीक है। अब मैं दूसरी बात करती हूँ, व्हेन स्टील इज प्रोवाइडेड इन कंप्रेशन साइड एंड टेंशन साइड ऑल्सो। अब मुझे स्ट्रेस डायग्राम बनाना है, तो मैं जो स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगी वो सिमिलर होगा जो मैंने टेंशन के लिए बनाया था। केवल मेरा फर्क क्या पड़ा, सी जो कंप्रेशन कंक्रीट ले रहा था दैट इज द फोर्स
वो है ही। इसके अलावा मुझे एक और फोर्स मिला जो फोर्स ले रहा है स्टील, कॉम्प्रेसिव फोर्स, जिसको हम लिखते हैं FSC ASC। FSC इज द स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन और ASC है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। एक फोर्स और मिला, लेकिन मेरी जो स्ट्रेस डायग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे मोमेंट में फर्क पड़ेगा। इसलिए क्योंकि मेरे पास 2 फोर्सेस है टॉप पर और एक बॉटम में। नीचे है 0.87 FYAST और टॉप पर मेरे पास 2 फोर्सेस है। तो समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारा क्वेश्चन और ये सेम है? नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और है। हाँ, फिर से पूछोगे। इफ ओनली स्टील का अपन नॉर्मली टेस्ट करते हैं लाइक UTM मशीन में या कोई भी मशीन में हाँ टेस्ट, हाँ हाँ। तो उसका इफ टेंशन डाल के इसको फिल करेंगे और कंप्रेशन डाल के फिल करेंगे तो दोनों में उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो सेम आएगा? नहीं, क्यों आएगा? टेंशन में अलग आएगा, कंप्रेशन में अलग आएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तुम मुझे उस कर्व की बात कर रहे हो? यस मैम। हाँ, अलग आएगा। अलग आएगा का मतलब कि जब आप फोर्स इंक्रीज कर रहे हो तब स्ट्रेन इंक्रीज होगी, मीन्स द स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग एंड स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग। मीन्स अगर y एक्सिस पर स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है तो x एक्सिस पर स्ट्रेन भी इंक्रीज होती जा रही है। तो अगर मैं कंप्रेशन में लोड कर रही हूँ, कंप्रेसिव फोर्स लगा रही हूँ, तो उसकी भी स्ट्रेसेस होंगी क्योंकि वो दब रहा है, क्रश हो रहा है। तो वो दब रहा है तो उसकी स्ट्रेसेस चेंज हो रही है और स्ट्रेन भी कंपैरेटिवली उसी हिसाब से चेंज होगी, लेकिन स्ट्रेन टेंशन के हिसाब से कम होगी। अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगाऊँ और स्ट्रेन देखूँ और कंप्रेसिव फोर्स लगाऊँ स्ट्रेन देखूँ तो दोनों में फ़र्क है, लेकिन ग्राफ ऐसे ही बनेगा। पर हो सकता है कि जिस पॉइंट पे तुमको जो वैल्यू मिली है, मीन्स जो x पे y मिला है वो उसमें ना मिले, सेम ना मिले, तो उस केस में डिफरेंट है। नॉर्मल जो डिजाइन करते हैं उसमें ई के वैल्यू सेम ही लेते हैं ना, टेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए? मॉडुलस ऑफ E की इलास्टिसिटी, हाँ E की वैल्यू, E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ, उसको तो नॉर्मल सेम ही लेते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी सेम 2 × 10 to the power 5। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्यों आया तुम्हारे दिमाग में? कुछ इसी से रिलेशन बना रहे हो क्या? नहीं, खाली वो बिहेवियर मान रहा था स्टील का कंप्रेशन में। नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन सही डायरेक्शन में है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। और अगर तुम ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं टेंशन के लिए ग्राफ बना रहा हूँ, तो जो थीटा मेरा है, थीटा इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। थीटा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के, वहाँ अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को बनाऊँ तो वो जो मेरा थीटा बन रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और तुम ये मुझे पूछ रहे हो क्वेश्चन, ये इसका रिलेशन रखता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों के लिए सेम होगा क्या? तो नहीं होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज डिफरेंट देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। EC होता है 5000 √FC के, ऐसा कुछ होता है। मैम कंक्रीट का नहीं पूछ रहा हूँ, खाली स्टील का ही कंप्रेशन और टेंशन में। स्टील का वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि सेम ही होना चाहिए। थीटा है तो वही, थीटा की बात कर रहे हैं हम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यू चेक इट अगेन। मुझे तो नहीं लगता कि, हाँ कंक्रीट में चेंज हो रहा है, लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके मैम। बस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मुझे लगता है कि स्टील में भी चेंज होगा। सेफी, एक काम करो, डू यू हैव UTM मशीन इन योर कॉलेज? मैम यहाँ भी कॉलेज बंद है। अच्छा, नहीं, एक बार चेक करो, यू जस्ट चेक इट आउट। क्योंकि देखो, भले ही ऐसा हुआ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन तो रहेगा दोनों में, लेकिन उनकी वैल्यू में डिफरेंस आएगा। ये मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने टेस्ट नहीं किया और मैंने किसी बुक में भी नहीं पढ़ा, क्योंकि जनरली हम कंप्रेशन की बात नहीं करते स्टील में। उसका कारण होता है कि स्टील
स्टील में एक्चुअली क्रिटिकल स्टील कब होता है, जब इट टेक्स टेंसाइल फोर्स, और इसलिए मैं टेंशन, और क्योंकि वो डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है तो मुझे टेंशन से मतलब होता है, इसलिए आई नेवर टेस्टेड इन कंप्रेशन। लेकिन अगर थोड़ा सा हम सोचे अपनी तरफ से, कुछ भी इमेजिनेशन हम लगाए कि मैं स्टील को टेस्ट कर रही हूँ कंप्रेशन में, तो ग्राफ विल बी डिफरेंट। ग्राफ इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि टेंशन में स्ट्रक्चर टूटता जाता है, कंप्रेशन में ऐसा नहीं होता। कंप्रेशन में एरिया इंक्रीज होता जाता है, तो उसका जो ग्राफ स्टील से बनेगा वो अलग बनेगा। मे बी इट वुड बी सिमिलर, वही है, ट्रेंड वही रहेगा, लेकिन वैल्यूज विल बी डिफरेंट। और अगर वैल्यू डिफरेंट हो गई तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में फर्क आ जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द थीटा, और वो थीटा मुझे नहीं लगता कि सेम मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो फिर भी ऐसा टेस्ट करके देखने में कोई बुराई नहीं है, एक बार स्टील को कंप्रेशन में टेस्ट करो। तुमसे एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि जब कंप्रेशन में स्टील की कोई मीनिंग नहीं होता तो फिर हम कॉलम में कंप्रेशन में स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं? बूटिंग में भी स्टील प्रोवाइड करते हैं। वो खुद के वेट से बकल ना हो जाए इसलिए करते हैं। खुद के वेट से बकल नहीं हो जानी, लेकिन अगर मान लो मैं शॉर्ट कॉलम डिजाइन कर रही हूँ तो बकल नहीं होगा, तो फिर मुझे स्टील की जरूरत नहीं है। श्रिंकेज इफेक्ट्स नहीं, लोकल शॉर्ट कॉलम तो क्रशिंग में फेल होता है, तो मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन उसी में से निकल सकता है, इसलिए मेरे दिमाग में एकदम से आ गया। हनी कोम्बिंग का कुछ हनी कोम्बिंग क्यों होगी? क्यों, हम ब्लॉक्स बनाते हैं तो कहाँ हनी कोम्बिंग होती है? शॉर्ट कॉलम हम बना दे, अगर टेम्पिंग प्रॉपर करे तो हनी कोम्बिंग नहीं होगी। स्टील हनी कोम्बिंग को नहीं बचाता। क्रीप इफेक्ट्स बकलिंग में जरूर टेंशन होता है तो स्टील की जरूरत होती है, तो अगर आप लॉन्ग कॉलम बना रहे हो तो आपको स्टील की जरूरत होगी। लोड ट्रांसफर कंक्रीट भी करेगा लोड ट्रांसफर। आप अगर टॉप फाइबर पे लोड लगा रहे हो तो वो अल्टीमेटली बॉटम फाइबर पे लोड ट्रांसफर करता जाएगा। बीम भी तो ट्रांसफर करता है। एक बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज्यादा हो गई तो फिर टेंशन आएगा। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, वाइब्रेशन चाहे वाइब्रेशन पे कहाँ पहुंच गए? सिंपल कॉलम की बात करते हैं। हमारे घर में एक कॉलम बना रहे हैं हम, तो क्यों बनाए हम, उसमें क्यों स्टील डालें? लॉन्ग नहीं होता ना वो कॉलम। हमारे घर में जितने हम कॉलम प्रोवाइड करते हैं वो लॉन्ग कॉलम नहीं होते। उसका शॉर्ट साइज कॉलम, स्टील ज्यादा लोड ले सकता है तो उसका कॉलम का साइज छोटा आएगा उससे। स्टील हम जनरली इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जब उस पर कॉम्प्रेसिव लोड होता है तो स्टील में लगे हुए जो टाइज है और स्टील है, इसके अंदर वाला जो कंक्रीट है, उसके अंदर के कंक्रीट को वो पकड़ के रखता है। अगर मैं ऐसा ना करूँ, स्टील ना दूँ, तो अपने आप आप जो कॉलम डिजाइन करोगे उसका एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा सेम लोडिंग के लिए। अगर मैं 10 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन कर रही हूँ और उसमें मैंने स्टील नहीं डाला तो उसका एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा। इट कैन टेक द लोड पर एरिया विल बी इंक्रीज्ड। अगर मुझे एरिया को कम करना है तो फिर मुझे अल्टीमेटली स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो स्टील क्या करता है, उसके अंदर वाला जो कंक्रीट है, कवर वाला आप छोड़ दो, बाहर का अंदर वाले कंक्रीट को पकड़ के रखता है, जैसे कि हम रस्सी से किसी चीज को बांध के रखते हैं ताकि वो स्पिल आउट ना हो। तो इसलिए हम बार्स को यूज करते हैं। पर बार ना तो बेंडिंग को रेजिस्ट कर रहा है, ना शॉर्ट कॉलम में, हाँ, ना बकलिंग रेजिस्ट कर रहा है, ना बेंडिंग रेजिस्ट कर रहा है, ना शियर रेजिस्ट कर रहा है। बार केवल अंदर वाले कंक्रीट को पकड़ के रखता है। तभी हम एरिया को कम कर पाते हैं, नहीं तो एरिया आपका बढ़ेगा। आप सिंपल कंक्रीट से बनाओ, एरिया बढ़ेगा। मैम यही आपके कंटिन्यू में मैं करना चाहता हूँ थोड़ा, कि अगर लोड कम है और बेंडिंग मोमेंट नहीं है, लोड बहुत कम है, तो सिर्फ मैं प्लेन कंक्रीट कर सकता हूँ और हायर ग्रेड कंक्रीट? देखो, हायर ग्रेड कंक्रीट
हम स्ट्रेंथ के लिए कई बार यूज़ करते हैं, लेकिन हमको रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हाई ग्रेड कंक्रीट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं। हमने पहले भी डिस्कस किया था, इट इज़ स्ट्रक्चर यानी ब्रिटल होता जाता है जितनी हम हायर ग्रेड यूज़ करते हैं। हायर ग्रेड करने का मीनिंग क्या है, बस उसको ध्यान में रखते ही हायर ग्रेड पर जाओ। पर आप सिंपल कंक्रीट से घर बना सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको आपके पास इतना एरिया और आप स्टील नहीं देना चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसा कोई भी नहीं चाहता क्योंकि हमारे पास इतना एरिया ही नहीं। आप खुद सोचो कि जो बड़े बड़े पहले स्ट्रक्चर हुआ करते थे, वो स्ट्रक्चर सिंपल ब्रिक कॉलम पे बना लिया करते थे, मॉन्यूमेंट्स जितने भी बने। तो फिर अगर वो रेजिस्ट कर सकते तो हमारे घर में एक सिंपल हम पीसीसी का कॉलम क्यों नहीं खड़ा कर सकते? हाँ कर सकता है, लेकिन एरिया बड़ा चाहिए। ओके। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, नॉर्मली स्लैब्स को डबली रीइंफोर्स कब डिजाइन करता है? तो नॉर्मली सिंगली रीइंफोर्समेंट की डिजाइन देखने को मिलती है स्लैब्स की। स्लैब डबली क्यों नहीं डिजाइन होता है सर? या फिर कब करता है, या फिर आपने कभी देखे हो शायद डबली रीइंफोर्स स्लैब? तुमने केवल छत देखी है ना रेसिडेंशियल बिल्डिंग की, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। पर ऐसा सोचो कि तुम एक वाटर टैंक डिज़ाइन कर रहे हो और वाटर टैंक की बाहर की वॉल डिज़ाइन कर रहे हो। तो बाहर की वॉल जो आपने बनाई है, बाहर बाहर की वॉल, वो देखो वो दोनों तरफ दोनों फेस पे रेनफोर्समेंट होता है। स्लैब में एक्चुअली नॉमिनल एनफोर्समेंट होता है, ऐसा उन लोग पढ़ा है, मतलब अभी जो जितना भी मैंने पढ़ा है या सर ने पढ़ा है, वो नॉमिनल एनफोर्समेंट के हिसाब से पढ़ा है, किधर किधर और किधर अगर टेंशन आ रहा है तो टेंशन फोर्स के हिसाब से पढ़ा है। मतलब इतना टेंशन फोर्स है तो इतना रिक्वायरमेंट एरिया ईएसटी है तो उतना ईएसटी प्रोवाइड कर दो। तो बेंडिंग हाँ, मोमेंट के हिसाब से नहीं, फ्लेक्चर के हिसाब से नहीं पढ़ा है तभी। मैं तुम्हारा है ना वो क्वेश्चन नहीं समझे ने। तुमको सर ने ऐसा पढ़ाया है कि जितना मोमेंट आया उसके लिए तुमने वो नहीं प्रोवाइड किया है, रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड किया, नॉमिनल प्रोवाइड किया, ऐसा? नहीं 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 ऐसा नहीं नहीं वैसे नहीं, मतलब आपने बोला कि वाटर टैंक वगैरह में दोनों फेस पे रिइंफोर्समेंट होता है। हाँ मैम, तो दोनों फेस पे मैम, एक फेस पे बेंडिंग मोमेंट होगा और दूसरे फेस पे नॉमिनल रिइंफोर्समेंट, वैसा बोल रहा था मैं। नहीं नहीं ऐसा, ये तुम्हारी बात है ना, वो भी सही है, लेकिन हम दोनों फेस पे रेनफोर्समेंट कब देते हैं? जब हमारे पास दोनों तरफ से रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस होती हैं। यानी मैं वाटर टैंक में दोनों फेस पे रेनफोर्समेंट इसलिए प्रोवाइड करती हूँ कि अंदर से वाटर प्रेशर होता है, बाहर से सॉइल प्रेशर होता है, मुझे दोनों को रेजिस्ट करवाना है, इसलिए मुझे दोनों फेस पे रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। लेकिन जब हम आरसीसी स्लैब की बात करते हैं, और जनरली मैं अगर डबली रेनफोर्स्ड की बात करूँ ना, मैं वहां से शुरू करती हूँ तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डबली रेनफोर्स्ड बीम हम तब प्रोवाइड करते हैं जबकि हमारे हमारे पास मोमेंट ज़्यादा होता है और डेप्थ रेस्ट्रिक्ट होती है। तो डेप्थ रेस्ट्रिक्ट होती है, इसका मतलब हम कंक्रीट बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। तो फिर वो मोमेंट रेजिस्ट कौन करेगा? कंक्रीट नहीं कर रहा है तो अल्टीमेटली स्टील हैव टू टेक द टेंशन। तो फिर वो हम क्या करते हैं, रिइंफोर्समेंट को टॉप फेस पे प्रोवाइड कर देते हैं। अब मुझे आप ये बताओ, यही मैं सेम कंसेप्ट स्लैब पे लगाती हूँ। स्लैब में डेप्थ का रेस्ट्रिक्शन की बात आप कर ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि इट इज ऑलरेडी वेरी इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन वेरी स्मॉल थिकनेस। तो उसकी ऑलरेडी थिकनेस इतनी कम है, फिर आप डबल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके क्या कम करोगे? क्योंकि आप कवर माइनस करोगे। मान लो मेरे पास 120 mm की थिकनेस है स्लैब की, जिसमें मैंने दोनों तरफ कवर माइनस कर दिया 25 25 50 mm माइनस हो गया। अब बचा कितना, उसमें से मैं रेनफोर्समेंट के डायमीटर माइनस कर दूं तो आपके पास इतनी जगह ही नहीं बचेगी। आप किस चीज को कम करने के लिए ऊपर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करो? कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो हम जनरली ऐसे नहीं बात करते। हाँ, लेकिन जहाँ रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस होती है वहां मुझे दोनों फेस पे रेनफोर्समेंट देना पड़ता है, उस केस में जरूर हम रेनफोर्समेंट देते हैं दोनों तरफ, और दोनों मेन भी हो सकते हैं और नॉमिनल भी हो सकते हैं। मैम ब्रिज स्लैब में भी डबल देते हैं क्या? ब्रिज स्लैब के अंदर? तो नॉर्मली इसका डेप्थ 500.5 मीटर भी जाता है। कौन ब्रिज सी का डेक स्लैब? स्लैब, कौन सी स्लैब? ब्रिज का डेक स्लैब। ब्रिज का दोनों तरफ रेनफोर्समेंट जाता है उसमें, टॉप पर भी, टॉप फेस पे भी और बॉटम फेस पे भी है। पर जो बॉटम फेस वाला है वो हमारा मेन रेनफोर्समेंट होता है, टॉप फेस पर हम नॉमिनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। बॉटम फेस तो हमको टेंशन के लिए रेनफोर्समेंट देना पड़ता है।
और is there any other question? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज we'll end the session over here. मैम एक लास्ट मैम, प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन दोनों में प्रीकास्ट और इंसिटो दोनों हो सकता है? नहीं, रुको, मैंने एक्चुअली इसका लिटरेचर जो पढ़ा था, इन सिटू जनरली हम एक बार आप पढ़ना, क्योंकि मैंने इसी बुक में जो मैंने आपसे किया था उसमें कहीं लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, उसने स्पेशली लिखा है कि हम प्री स्ट्रेस लैब को इंसिटू कर सकते हैं या फिर कौन सी, तो उसने लिखा है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है तो आंसर देना ठीक नहीं है, पर उसमें एक है वर्ड, मैंने पढ़ा है उसको, तो एक बार थोड़ा रेफर करना, क्योंकि गलत आंसर देने से अच्छा है कि आप उसको खुद पढ़े तो समझ में आएगा आपको। हाँ मैम, दैट वुड बी बेटर। है ना, और उसमें है, मेंशन्ड है उसमें, क्योंकि ये मेरे पढ़ने में आया है। मैम रीजन भी मेंशन है ना? हाँ, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो सेशन एंड करें? ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया फॉर अस। मुझे ये नहीं पता कि बच्चों को मुझसे सीखने को मिला कि नहीं मिला, आई डोंट नो। जितना मैं जानती थी कुछ चीजें मैं भी नहीं जानती, सो मेरे लिए अच्छा हुआ कि बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस किए और आई विल गो थ्रू दैट आल्सो। मे बी कुछ चीजें हमको पता होती है लेकिन हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आई डोंट नो मैं आपको डिजाइन सिखा पाई थी कि नहीं, पर मे बी अगर आपको आगे भी कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क मी। ऐश्वर्या मैडम के पास मेरा मेल आईडी है, तो आप उसमें आई विल शेयर द मेल आईडी विथ यू ऑल, तो आप लोग डायरेक्टली मैम को अपने जो क्वेश्चंस है मेल कर सकते हैं। फाइन, सो ओके मैम, वील एंड आवर सेशन ओवर हियर। सो थैंक यू सो मच, एंड इन फ्यूचर अगर वापस मैम एक मौका मिलता है तो we'll have one lecture of yours. Yes, thank you on behalf of me and thanks to all the students, and especially Aishwarya madam, she was also my student before, so it was my fortune that you have called me as an expert. Thanks. Okay ma'am, thank you so much. Okay, bye. Okay, bye. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.